तो नमस्कार। मैं सीए सुमित गर्ग एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ईच वन ऑफ यू इन दिस टीम कासा प्लेटफॉर्म वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस one of the important topic, various changes in the new labor law. And we have with us, first time we have with us CA Ankush Jain ji from Mumbai. Welcome to you, Ankush ji, on this channel. थैंक यू सर, थैंक यू। And definitely we are going to a good and wonderful session on this topic because we have not organized such type of topic in past. And many participants have joined till time, and they will other will see later on recording. If you have any queries, you can post in the chat box during the discussion. You can ask with the Ankush ji and make it interactive, and whatever you have doubt you can clear by this 90-minute session. And before inviting him, I would like to brief about Ankush ji practicing chartered accountant based on Mumbai. He is having CA qualification, graduation from Kota University, Kota. He qualified with experience in the HR, recruitment services, payroll management, labor law compliance, industrial citation advisory, and he expertise in the labor law litigations, representing client across various authorities and managing complex compliances and dispute effectively across pan India. So we can say the expert in the field, and major client is also given in the profile. But in short, I would like to say that he is definitely going to a good, taking a good session for benefiting all the members at large. And anything else you can communicate, and presentation will be shared later on through the group. So Ankushi, this is CASA platform. We are having 15 years existence, and we are having more than 1,000 members. ग्रेट। And definitely, we are organizing weekly a session on different topic. Earlier in the February, we have planned new income tax act 2026, 2025, 9 days series, and we have more than 300 participants have joined live. Now ग्रेट। this is another important topic, but definitely it is going to be a good knowledge session. So now over to you for technical session, Ankush bhai. Thank you, sir. Thank you, Sumit sir. Thank you. So, first of all, good evening to all of you. I say thanks to the CASA team to allow me to give in insights on the new labor codes, and especially to the Sumit sir and the whole team to interact with me, all of you, regarding the new labor laws. कि what are the sessions, what I will give you. So, मेरा यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा कि मैं जो न्यू लेबर कोड्स पे क्या हाइलाइट्स है वो देने का पूरा प्रयास रहेगा। उसमें क्या हम लोग एज ए सी अपने क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं, क्या सर्विसेज हम लोग उनको दे सकते हैं, वो हमारा मेन अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्या है न्यू लेबर कोड्स में। तो मेरा जो इंटरेक्शन रहेगा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। हम लोग ड्यूरिंग द सेशंस क्वेश्चन आंसर लेते रहेंगे, बट क्वेश्चन आंसर हम लोग प्रीफर करेंगे अगर आप वीडियो ओपन करके डायरेक्ट वन टू वन क्वेश्चन करेंगे तो दैट विल बी टू गुड। बिकॉज आप मुझे चेट बॉक्स में लिखेंगे, हो सकता है वो स्किप हो जाए, मैं प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाऊँ। तो इंटरेक्शन हमारा टू वे रहेगा, दैट विल बी टू गुड। वो मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी बेटर रहेगा। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव थैंक्स टू द सुमित सर एंड होल टीम। अंकुश जी, आप क्वेश्चंस बीच में लेंगे या लास्ट में लेंगे? सर बीच में भी लेंगे हम लोग, और ओके। थोड़ा थोड़ा कुछ लोग हम लोग वीडियो जिनके ओन से जो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है उस मोड पे हम लोग बीच में लेते रहेंगे। एंड कुछ जो फाइनल्स बचेंगे हम लास्ट में लेते रहेंगे, क्योंकि अदरवाइज टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि नहीं, ओवर हो रहा है। टू वे कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। Yes, yes. I have allowed everyone to unmute themselves and ask question. But जब क्वेश्चन ना हो तो म्यूट रखिएगा so that better interaction हो नहीं, सके। जैसे हमारा अभी सेशन चलेगा हाफ एन आवर के बाद हम्म, मेरे जो हाइलाइट्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लूंगा। फिर yes, उसके yes. बाद Over. नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाऊंगा, तो तब तक आपको म्यूट रखना है, उसके बाद सबको अनम्यूट कर लेना है जिसको भी क्वेश्चन आंसर। सो जो अगर हम बात करें कि न्यू लेबर कोड्स क्या चीज है यार, ये न्यू लेबर कोड्स क्या आ गया इसमें ऐसा, सबसे बड़ी मेन चीज है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 21 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एग्जिस्टिंग 29 जो लेबर लॉज है उनको समराइज करते हुए चार न्यू लेबर कोड्स दे दिए।
ये लेबर कोड्स किसके बारे में बात करेंगे और इनमें क्या चेंजेस आ गया, ये कौन से एक्ट्स कवर करेंगे। तो इसमें वन एंड ओनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है वही कवर किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट जहां का जहां है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जिस्टिंग 29 लेबर लॉज थे, लेबर एक्ट्स थे, उनको समराइज कर दिया गया है और 4 लेबर कोड्स दिए गए हैं। ये जो लेबर कोड्स थे पहले ही बन चुके थे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स के साथ जो भी एग्रीमेंट किया, जो भी उनका म्यूचुअल डिस्कशन हुआ, उसके बाद फाइनली 21 नवंबर 2025 को इनको पास आउट कर दिया गया। तो ये जो लेबर कोड्स है ये 29 एग्जिस्टिंग एक्ट्स को समराइज करते हैं। और ये 4 लेबर कोड्स क्या है, सबसे पहला था कोड ऑन वेजेस 2019 जो कि वेजेस की बात करता है। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड 2020 जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा होना चाहिए, यूनियंस का क्या होगा, उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो जनरली एम्प्लॉइज के फ्यूचर बेनिफिट्स की बात करता है, लाइक पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेचुटी, मैटरनिटी बोनस, इन सब की बात करता है। एंड द लास्ट आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये जो है कि वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करता है। तो जनरली जो 29 लेबर लॉज है, एग्जिस्टिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स है, उनको समराइज करते हुए इसमें 4 लेबर कोड्स में डिफाइन कर दिया गया। स्टेट्स का जो पार्ट है, चाहे वो प्रोफेशनल टैक्स हो, लेबर वेलफेयर फंड हो, पर्टिकुलर कोई सेस हो, वो एग्जिस्टिंग कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस कोड में कौन सा एक्ट समराइज हो गया, सबसे बड़ी चीज वो है कि यार कौन सा मेरा एग्जिस्टिंग एक्ट किस कोड में चला जाएगा। तो सबसे पहले जो मेरा आता है दैट इज द कोड ऑन वेजेस 2019 जो मेरे वेजेस की बात करेगा। पास आउट हो चुका था, बन गया था 2019 में, बट पास आउट हुआ अभी 2025 में। ये वेजेस की बात करता है। तो इसमें जो 4 एग्जिस्टिंग एक्ट्स है, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस टू 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस, इक्वल रेमुनरेशन, ये 4 ऐसे एक्ट्स हैं जो वन एंड ओनली वेजेस की बात करते हैं। तो इनको समराइज करते हुए कोड ऑन वेजेस 2019 में डाल दिया गया है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड 2020 जो कि रिलेशंस की बात करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशंस की बात करता है। इनमें 3 एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं जिनको समराइज किया गया है, ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो 3 ऐसे एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं जिनको समराइज करते हुए इस कोड में दे दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। स्क्रीन विजिबल है ना सर, सुमित सर? हेलो? यस सर, यस सर। ओके ओके, परफेक्ट। तो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 आता है। इसमें 9 एग्जिस्टिंग ऐसे एक्ट्स हैं जिनको समराइज करते हुए इस कोड में डाल दिया गया है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज ए सीए, हम लोग को अपने क्लाइंट्स को क्या पिच करना है, वो सबसे बड़ा एक्ट यही है। जिसमें आता है पीएफ आ गया, ईएसआईसी आ गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन आ गया, मैटरनिटी, ग्रेचुटी, साइन वर्कर्स, बीओसीडब्ल्यू और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। ऐसे 9 एग्जिस्टिंग एक्ट्स जिनको समराइज करते हुए इस कोड में दे दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा लास्ट आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्क कंडीशंस कोड 2020, ये छोटे छोटे ऐसे एक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, मतलब सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इंडस्ट्री तो इंडस्ट्री चलता है कि इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, दूसरे किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो 13 ऐसे एक्ट्स हैं जिनको समराइज करते हुए इस कोड में दे दिया गया है। सबसे पहले आता है फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, डॉक वर्कर्स एक्ट, बीओसीडब्ल्यू, प्लांटेशन, सीएलआरए, आईएसएमडब्ल्यू, वर्किंग जर्नलिस्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट, सेल्स प्रमोशन, बीडी एंड सिगार वर्कर्स। तो ये ऐसे 13 छोटे छोटे एक्ट्स हैं जिनको समराइज करते हुए इस कोड में डाला गया, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जिसके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा उसका अकॉर्डिंगली कवर हो जाएगा। मेरा जो हाईलाइट्स था कि हाँ ये 4 कोड्स में कौन कौन से 29 लेबर लॉज समराइज हो गए, तो ये वाला कोड्स कवर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या क्या मेजर चेंजेस है, अब हमारा क्लाइंट हमें फोन करता है कि यार क्या चेंजेस हो गया, मेरे ऊपर क्या एप्लीकेबल होने वाला है, मैं हम लोग उसको कैसे पिच करें, डिटेल में तो उसको बता नहीं सकते, हम लोग समझा नहीं सकते। तो एक समराइज फॉर्मेट में अगर हम बात करें कि क्या मेजर चेंजेस हैं जो कि इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं, एम्प्लॉयज को इफेक्ट करेंगे, तो ऐसे जो समराइज पॉइंट्स है उसकी अगर हम बात करें, सबसे पहला था मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स टू ऑल वर्कर्स। अभी तक क्या था कि जो बिग कॉर्पोरेट्स है, एमएनसीज क्लाइंट्स है, वो किसी को अपॉइंट करता है तो अपॉइंटमेंट लेटर देता है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज प्रॉपर कंप्लीट करता है। बट कॉन्ट्रैक्टर्स की अगर हम बात करें, डेली वर्कर्स की बात करें, तो वो केस में कोई ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, वहां कोई प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होता है वो उसी केसेस पे अराइज होता है। तो यूनिफॉर्मिलिटी लाते हुए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप किसी को भी अपॉइंट करो, डेली वर्कर्स को करो, कैजुअल वर्कर्स को करो, कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करो, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी है। अगर आपने अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया तो वो उसकी ज्वाइनिंग प्रॉपर नहीं मानी जाएगी और इनवैलिड होगी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंगल रजिस्ट्रेशन, क्या हो गया, 29 लेबर लॉज थे, सबके रजिस्ट्रेशन अलग अलग चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का अलग हो गया, बीओसीडब्ल्यू का अलग हो गया, आईएसएमडब्ल्यू का अलग हो गया। अब डिपार्टमेंट सारा सेंट्रलाइज हो गया, सारे रजिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज होने जा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलना है कि हम सिंगल रजिस्ट्रेशन देंगे, उसके अंदर ही आपको टिक मार्क करना है कि कौन सा कोड आपके ऊपर एप्लीकेबल है, कौन सा लेबर लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अकॉर्डिंगली वो क्या होगा कि सिंगल रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आपके सारे एक्ट्स कवर हो जाएंगे। आगे उन्होंने फर्दर बोला कि सिंगल लाइसेंस दे देंगे, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस कर देंगे, और रिटर्न जो होता है, जैसे एनुअल रिटर्न फाइल होता है, उस एनुअल रिटर्न में जो भी आपके ऊपर लेबर लॉ एप्लीकेबल होगा, उसका रिटर्न भी आपको एक ही रिटर्न में सारा फाइल करना है। मतलब आपके यहाँ पे कंप्लायंस बर्डन को हम रिड्यूस कर देंगे। ये यहाँ पर गवर्नमेंट का नेक्स्ट मोटो अगर हम बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या गवर्नमेंट लेकर आई है, तो मैंडेटरी एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस। अभी जो कॉर्पोरेट्स की बात करें, ठीक है, टाइमली पेमेंट होता है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ की 1-2 तारीख को पेमेंट हो जाता है। बट अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की, कैजुअल वर्कर्स की, डेली वर्कर्स की, तो वहां पे एक मंथ के डिले पे पेमेंट होता है। कोई 5 दिन बात कर रहा है, कोई 10 दिन बात कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्मिटी लाते हुए बोल दिया कि अगर आपको एम्प्लॉय हायर करना है, तो उस एम्प्लॉय का पेमेंट पर्टिकुलरली आपको 7 तारीख तक करना ही पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक। अगर 7 तारीख तक आपने पेमेंट नहीं किया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, आपके ऊपर फाइन प्रोविजन जो भी एप्लीकेबल है वो अराउंड एप्लीकेबल्स होंगे। नेक्स्ट उन्होंने फर्दर क्लेरिफाई किया कि अभी तक आप जो केस पेमेंट करते थे, किसी को कुछ भी दे दिया, वो अब अलाउड नहीं होगा। आपको सारा का सारा पेमेंट वर्चुअली करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट आपका एप्लीकेबल होगा। आपको प्रॉपर बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है नेशनल फ्लोर वेजेस। स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने ओन रूल्स थे। मिनिमम वेजेस किसी के यहाँ 6 मंथ्स लिए एप्लीकेबल है, किसी के यहाँ 12 मंथ्स में एप्लीकेबल है, और किसी की रेट हायर है, किसी की लोअर है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो हायर रेट है, मुंबई की अगर हम बात करें तो हायर रेट है। बट साउथर्न स्टेट जो है वहां पर लोअर रेट्स है। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम नेशनल फ्लोर वेज लेके आते हैं, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हाँ ये रेट रहेगी, उसी को स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना है और उसी की रेट को आगे फर्दर प्रोसीड करना है। उससे बिलो किसी को पेमेंट नहीं किया जा सकता। अब ये फ्लोर रेट कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कैटेगरी वाइज, लाइक सेमी क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, हाईली स्किल, अनस्किल्ड, इस बेसिस पर रेट डिसाइड की जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट को उसी रेट को फॉलो करना है। मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड हो गया कि इस एम्प्लॉयज को इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। जो वहां पर पहले फिक्स नहीं था, किसी को कुछ भी रेट हम लोग दे रहे हैं, तो वो वहां पर चेंज हो रहा है और यहाँ पर जो भी होगा वो नेशनल फ्लोर वेज के हिसाब से चलेगा। नेक्स्ट बड़ा जो मार्केट में हिट आ रहा है, सबसे बड़ा आ रहा है सोशल सिक्योरिटी कवरेज हो गया गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स की। जो डेली वर्क, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स लाइक जो जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, इनके जो डिलीवरी बॉयज हैं, इनके सोशल सिक्योरिटीज की कोई बात नहीं करता, इनके सोशल बेनिफिट्स की कोई बात नहीं करता। जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह, उनके सोशल बेनिफिट्स का कोई प्रोविजन नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ही बोल दिया कि अब इसके सोशल बेनिफिट्स का भी काम किया जाएगा। मतलब अब आपको उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। बट यहाँ क्या कंट्रीब्यूशन की रेट 12%, 4% होगी? पीएफ की रेट जैसे 12% है, क्या उनके केस में भी 12% एप्लीकेबल होगी? ईएसआईसी की रेट जो 4% है, क्या उनके केस में भी एप्लीकेबल होगी? गवर्नमेंट ने फर्दर क्लेरिफाई किया कि नहीं, उनके केस में ये रेट एप्लीकेबल नहीं होगी। जो भी डिलीवरी बॉय पर्टिकुलर कंपनी को जितना बिजनेस दे रहा है उसका 1.5% एक फंड क्रिएट किया जाएगा। उस फंड में उनको कॉन्ट्रीब्यूशन करना है कंपनी को, और वहां से ही उसके सोशल बेनिफिट्स एप्लीकेबल होंगे। वो गवर्नमेंट ने यहाँ फर्दर क्लेरिफाई किया। नेक्स्ट आता है एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप। एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप मतलब अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी एज 40 ईयर्स एंड अबाउ है, या आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो जिसका एज 40 ईयर्स एंड अबाउ है, तो वो केस में कंपल्सरली आपको एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा, बॉडी चेकअप कराना पड़ेगा। यहाँ पे आगे फर्दर डिस्क्राइब किया कि क्या फुल बॉडी चेकअप एप्लीकेबल होगा? नहीं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो बेसिक चेकअप होना चाहिए एटलीस्ट वो तो कंपनीज को करके ही देना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट जो हमारा हाइलाइट्स पॉइंट है वो था पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। मतलब अभी क्या होता था, एक एम्प्लॉय ने कोई कंपनी ज्वाइन किया, बाद में उसने चेंज करके दूसरी में गया, फिर तीसरी में गया, यूएन नंबर एक जनरेट होता है पर मेंबर आईडी मल्टीपल्स क्रिएट होती है। पीएफ के केस में, ईएसआईसी के केस में मल्टीपल ईएसआईसी नंबर जनरेट हो जाते हैं।
तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सारा का सारा हम आधार से लिंक करेंगे, और आधार से लिंक करने के बाद उसका ऑटोमेटिक पोर्टेबिलिटी होगा। मतलब अगर उसने एक कंपनी छोड़ के दूसरे में ज्वाइन किया, दूसरे से तीसरे में ज्वाइन किया, तो ऑटोमेटिक उसका ऑटो क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा, सारा पीएफ ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। एम्प्लॉय को यहाँ पर रिक्वेस्ट रेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है कि वुमेन्स को नाइट शिफ्ट में वर्क करना अलाउ कर दिया गया है। बड़ी एमएनसी कंपनीज में ऑलरेडी प्रोविजंस थे, बट अब यहाँ पर 500 मैन पावर अगर आपके पास है, तो ऐसे केसेस में आप वुमेन्स को भी नाइट वर्क में अलाउ कर सकते हो, सब्जेक्ट टू देयर कंसेंट, कि उनकी कंसेंट होना कंपल्सरीली है। साथ में आपको उनकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने ये सब कर लिया है, तो आप यहाँ पर वुमेन्स को नाइट शिफ्ट में हायर कर सकते हो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो जेंडर था कि मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, उनका डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने खत्म कर दिया है। अब यहाँ पर सिंपल गवर्नमेंट ने बोला है कि सब इक्वल है। अगर किसी के पास क्वालिफिकेशन सेम है, डेजिग्नेशन सेम है, एक्सपीरियंस सेम है, तो आप उसमें बाइफिकेशन नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आपको वहां पर इक्वल पेमेंट करना है वेजेस का। नेक्स्ट आता है सोशल सिक्योरिटी कवर्ड ऑलरेडी। मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स, ग्रीवाइंस कमेटी, लाइक मैं पोस्ट की बात करूं, पोस्ट पॉलिसी की बात करूं, तो वहां पर वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन होना कंपलसरी कर लिया गया है कि उस कमेटी में वुमेन्स को रखना 100% कंपलसरी है, वो स्किप नहीं किया जा सकता था। तो ये तो थे हाईलाइट्स पॉइंट्स, कि मेजर हाईलाइट्स क्या है जो हम अपने क्लाइंट्स को पिच करें, बताएं कि क्या न्यू लेबर कोड्स में आ गया। अगर मैं आगे फर्दर बात करूं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के, उस इस प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं जाऊं, तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेस होने जा रहा है एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सिंगल रजिस्ट्रेशन में हम आपको सारे एक्ट्स कवर कर देंगे, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस कर देंगे, बर्डन आपका खत्म कर देंगे। तो यहां पर आपका जो होने वाला है सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेस होने वाला है। नेक्स्ट आपका आता है कि वेजेस की डेफिनेशन यहां पर चेंज कर दी गई है। वेजेस की क्या डेफिनेशन आ गई, मैं आगे उसको फर्दर इलेबोरेट करूंगा। उसकी वजह से आपका पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेचुटी, लिव एंकेजमेंट्स का प्रोविजन बढ़ने वाला है, कंपनीज के ऊपर उसकी एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज आने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हायरिंग ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉइज। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज मतलब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, जिसको आप पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए हायर कर रहे हो कि 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो आपके पास यहाँ पर फिक्स हो गया, एग्रीमेंट्स करो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के साथ और उसको हायर करो। उसके प्रोविजंस ऑलरेडी फिक्स कर दिए गए हैं कि 1 ईयर एंड अबाउ कंप्लीट करता है तो उसको ग्रेचुटी पे करना है कि क्या करना है, तो आपको हायर करना यहाँ पर इजी हो जाएगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्कर्स, मतलब आपको एम्प्लॉयज की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखना है। तो एम्प्लॉयर के केस में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होने वाली है। एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो आपका वेजेस चेंज हो गया, वेजेस की डेफिनेशन चेंज हो गई, बेसिक 50% रखना कंपलसरी हो गया। वो केस में आपको पीएफ ज्यादा मिलेगा, ग्रेचुटी ज्यादा मिलेगी, लिव एंकेजमेंट्स का अमाउंट आपको इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज के जो सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स थे, जो फ्यूचर की बात करते हैं, रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर उनके अमाउंट इंक्रीज होने वाले हैं। यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस, अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर रेट डिसाइड करेगी, एक रेट डिसाइड करेगी कि अनस्किल्ड को इतना मिलेगा, सेमी स्किल्ड को इसका इतना मिलेगा, स्किल्ड को इतना मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस मिलने वाला है, उससे कम आपको यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट आता है मोर प्रोटेक्शन इन केस ऑफ ले ऑफ। अगर आप किसी का कोई कंपनी किसी एम्प्लॉयज को रिमूव कर रही है, तो रिमूव के केस में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, इजीली रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर एम्प्लॉयज की सेफ्टी बढ़ जाती है कि उनको ले ऑफ करना इजी नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है कि बेटर वर्कर्स फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। पहले यहाँ पर सोशल सिक्योरिटीज की कोई बात ही नहीं थी, तो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी यहाँ पर सोशल सिक्योरिटीज में कवर कर दिया गया है। साथ में जो ग्रेचुटी का प्रोविजन डाला गया है फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के लिए, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज यहाँ पर ग्रेचुटी क्लेम कर सकते हैं अगर 1 ईयर एंड अबाउ है। कुछ कंडीशंस ऐसी है, जैसे उसका डिसेबलमेंट हो गया या वो मर डेथ हो गया, तो वो केस में प्रपोर्शनेट ग्रेचुटी इनको प्रोविजन प्रोवाइड की जाएगी, जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स पहले 1 ईयर के केस में ग्रेचुटी प्रोविजन नहीं देते थे। अब यहाँ पर मोर सिक्योरिटीज प्रोविजन हम लोगों को मिलने वाले हैं। अब हम बात करूं कि मैं हम सीएस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम हमारे क्लाइंट्स को क्या पिच करें, क्या हम लोग नया बिजनेस लेकर आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज आती है कि रिव्यू वेज स्ट्रक्चर। अभी कंपनी का जो भी वेज स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना पड़ेगा कंपनी को, क्योंकि बेसिक वेजेस कम से कम आपकी 50% होना चाहिए सीटीसी का। तो हर कंपनी को अपना वेज स्ट्रक्चर रिवाइज करना पड़ेगा और रीड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो हमारे लिए यहाँ यही अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने क्लाइंट को पिच करें कि भैया तुझे न्यू लेबर कोड के हिसाब से अपना सैलरी स्ट्रक्चर, वेज स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा।
तो ये हम लोग क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं। ये जो पीरियड्स है हमारे पास 21 नवंबर से लेके 31 मार्च तक, ये ट्रांजिशनल पीरियड है। इस ट्रांजिशनल पीरियड में ही कंपनी को सारे चेंजेस करने हैं और एक ड्राफ्ट बना के रखना है, क्योंकि 1 अप्रैल ऑनवर्ड से मेजरली एप्लीकेबल होने वाला है। अभी तक इसके रूल्स आ चुके हैं पर फाइनलाइज नहीं हुए हैं। जब तक कोई कोड के प्रोविजंस फाइनलाइज कोड तब तक एप्लीकेबल नहीं होता है जब तक उसके रूल्स फाइनलाइज नहीं हो जाते। तो दिस इज द ट्रांजिशनल पीरियड, और इसी ट्रांजिशनल पीरियड में हम लोगों को अपने क्लाइंट्स को गाइड करना है कि क्या उनको चेंजेस करने हैं, वेज स्ट्रक्चर कैसे रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट आता है, उनको साथ में अपॉइंट लेटर भी नए इशू करने पड़ेंगे, नए फॉर्मेट में देने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंगली कंपनीज को अपनी एचआर पॉलिसी चेंज करना है, अपॉइंट लेटर का फॉर्मेट चेंज करना है। तो ये सारी चीजें हमें अपने क्लाइंट्स को बतानी रहेगी। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिश एफ वर्क फ्लोज, क्योंकि यहाँ पर वेज पेमेंट का डेट फिक्स कर दिया गया है कि अगर आप मंथली सिस्टम में हो तो आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक पेमेंट करना है। अगर आप वीकली पेमेंट सिस्टम में हो तो आपको वीकेंड में पेमेंट करना है। और साथ में जो एफ एंड एफ है, जो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया रेजिग्नेटेड केस में, T+2 डेज में, मतलब जैसे शेयर मार्केट में कॉन्सेप्ट है कि आज मैंने शेयर बेचा, उसका पैसा 2 दिन में मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। सेम वैसे ही एम्प्लॉय की जो लास्ट वर्किंग डे है उसके 2 दिन में उसका पैसा एफ एंड एफ बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो कंपनीज को यहाँ पर बजट मेंटेन करने पड़ेंगे, उसका फंडिंग करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ भी नेक्स्ट पिच करने की अपॉर्चुनिटीज है कि यहाँ पर आपको बजट कैसे मेंटेन करना है, अपनी शेड्यूल्स कैसे मेंटेन करने हैं, पेमेंट साइकिल कैसे मेंटेन करनी है। अपडेट रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ने बोला है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन हम देंगे, तो श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू सारे रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट्स को, कंपनीज को अपडेट करने पड़ेंगे, एलायन नंबर जनरेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें हमारे क्लाइंट्स का रजिस्ट्रेशन सारे अपडेट करवाने हैं एज पर न्यू लेबर कोड्स। अब बात निकल कर आ गई तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा ईएसआईसी था पहले वो एप्लीकेबल नहीं होता था। अगर आपका हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरी है, नर्सिंग होम्स है, पहले उन पर ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं था। गवर्नमेंट ने उसको चेंज करते हुए बोल दिया कि ईएसआईसी नाउ सब पे एप्लीकेबल है। अगर सब पे एप्लीकेबल कर दिया दैट मींस सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो गया यूनिवर्सली। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो भी हमारे हॉस्पिटल वाले क्लाइंट्स है या हमारे नर्सिंग होम्स वाले क्लाइंट्स है, उनको भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उनको लेना रहेगा। वो केस में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है ईएसआईसी के केस में पिच करने की। नेक्स्ट आता है मेंटेन रिकॉर्ड्स। पहले लेबर लॉ में प्रोविजंस था कि आप हार्ड कॉपी में मेंटेन करो रजिस्टर्स, हार्ड कॉपी में सैलरी स्लिप वगैरह इश्यू करो। गवर्नमेंट ने ध्यान रखते हुए कि डिजिटल इरा है, डिजिटल इरा को ध्यान रखते हुए आपको जो भी रजिस्टर मेंटेन करने हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने, सारे वर्चुअली मेंटेन करने हैं। आपका जो भी असेसमेंट होगा, लिटिगेशन वगैरह का जो भी मैटर है वो भी वर्चुअली सोल्व होगा। आपको मेल आएगा, उस पर रिप्लाई करना है। जैसे इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट्स का प्रोविजन है, जीएसटी में फेसलेस का आने वाला है या है, वैसा ही सेम गवर्नमेंट लेबर लॉ में लेके आने वाली है कि फेसलेस असेसमेंट है, आप अपना नोटिस का रिप्लाई फाइल कीजिए, वर्चुअल हियरिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, अकॉर्डिंगली आपका सबमिशन यहाँ पर होने वाला है। सेफ्टी कंप्लाइंसेस यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं, क्योंकि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यहाँ पर इंक्रीज करने पड़ेंगे, वुमन की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का अरेंज करना पड़ेगा। तो दीज वाज द चेंजेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेबर एक्ट टू द न्यू लेबर कोड्स, कि क्या नया चेंजेस हो गया, क्या अपॉर्चुनिटीज है। आगे फर्दर हम डिटेल में बात करेंगे इस पर। एक बार सबसे पहले मैं जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं उस पर अगर किसी ऑडियंस के कोई क्वेश्चंस हो तो हम लोग कवर करना चाहेंगे। आर द कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर्स कवर्ड एज पर फिक्स टर्म एम्प्लॉइज। मैं यहाँ पर क्लियरिफाई कर दूं, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फिक्स है। अगर हम मैं प्रीफर करूंगा क्वेश्चन आंसर, अगर आप अपने आपको अनम्यूट करके वीडियो फॉर्म में करेंगे तो दैट विल बी बेटर, कि मैं भी सामने इंटरेक्ट कर पाऊंगा कि कौन मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो फिक्स टर्म एम्प्लॉइज मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फिक्स हो गया। तो अगर कंसल्टेंट है जो एक्सक्लूसिवली आपके लिए काम कर रहा है, वन एंड ओनली आपके लिए काम कर रहा है, तो ऐसे केसेस में वो कॉन्ट्रैक्टर भी कवर हो जाएगा, वो कंसल्टेंट भी कवर हो जाएगा। बट कोई नॉन एक्सक्लूसिवली काम कर रहा है, जैसे कि हम सीए लोग, हम एक क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं, दूसरे को सर्व कर रहे हैं, तीसरे को सर्व कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में वो प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप सर्व कर रहे हो तो लेबर कोड्स के प्रोविजंस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चंस? That question was raised by me. This is Umesh Pakkar. So I have a case wherein the contracts are signed or renewed on an annual basis. So prior to this labor code, there was no provision for social security or gratuity for these guys. But now since March is approaching, the question has actually a reason is, since these guys are working essentially as employees, I mean, along with the employees on full-time basis, but the agreement says it's on principal to principal basis.
right? So, and it should not be construed as they are implied as employees. So that's where the dilemma is, whether should we make a accruals for the gratuity provision for the entire duration, या or जो ग्रेचुटी प्रोविजंस में यहाँ पर जो एप्लीकेबल है, सबसे पहले अगर आपका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अगर साइंड है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, एज अ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अगर आपने उसको हायर किया तो सेम प्रोविजंस 5 इयर्स का जो था वही 5 इयर्स का प्रोविजंस आगे भी फर्दर एप्लीकेबल है। परमानेंट एम्प्लॉयज के केस में कोई चेंजेस नहीं है। बट आपने अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हायर किया था, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हायर on किया an था, annual basis? सॉरी, It is renewed annually. So, it I is mean, renewed annually, but you are hiring for a fixed term की like 1 to 1 year basis, 2 to 3 years yeah. basis. तो इन दैट सिनारियो ग्रेजुएट इज एप्लीकेबल, और इंस्टीट्यूट ने भी फर्दर क्लेरिफाई कर दिया है और गाइडेंस नोट इश्यू किया है कि ऐसे केसेस में आपको ग्रेजुएटी का प्रोविजन 21 नवंबर से ही करना पड़ेगा, फाइनेंशियल्स में उसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप उसको फिक्स टर्म एज अ फिक्स टर्म एम्प्लॉइज हायर कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका एवरी ईयर रिन्यू होने वाला, माना कि वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो आपका ग्रेजुएटी उसके ऊपर एप्लीकेबल और आपको उसका प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। right, sir. या एनी अदर? ईएसआईसी एप्लीकेबिलिटी में आगे फर्दर उसका प्रोविजंस आएगा, मैं उसको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, तो ईएसआईसी के हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे। यस नितिन जी। मेरा भी वही कंसर्न था कि कोई मिनिमम एम्प्लॉयमेंट का है कि कितने मिनिमम मेंबर्स एम्प्लॉयज होंगे तो एप्लीकेबिलिटी होगी। हाँ, तो मैं जनरल प्रोविजंस अगर बात करूं, जैसे कि पीएफ के प्रोविजंस 20 एंड अबाव के ऊपर एप्लीकेबल्स होते हैं, बिलो दैट वॉलंटरली है। ईएसआईसी के प्रोविजंस 10 एंड अबाव पे एप्लीकेबल्स होते हैं। ग्रेचुटी के प्रोविजंस 10 एंड अबाव पे एप्लीकेबल होते हैं। मैटरनिटी के प्रोविजंस 10 एंड अबाव एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल होते हैं। तो जो एप्लीकेबिलिटी थी वो सेम है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की जो सीलिंग लिमिट है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, वो सीलिंग लिमिट आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो लेबर कोड्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होने के पहले आपकी सीलिंग लिमिट्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। और जो ये मतलब जैसे डेली बेसिस पे होते हैं या पीस रेटेड एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका कैसे करना है फिर? जो डेली वर्कर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, उनके केस में अपनी सीलिंग लिमिट्स पहले चेक करनी है कि एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं है। अगर एप्लीकेबिलिटी तो आपको पीएफ, ईएसआईसी, लेबर वेलफेयर फंड, प्रोफेशनल टैक्स, ग्रेचुटी के प्रोविजंस जो एप्लीकेबल है वो उन पे भी एज है, क्योंकि आपने उनको डेली वर्कर्स को हायर तो किया है पर उनका एक कोई पीरियड फिक्स नहीं किया कि आज उसको रखा कल भगा दूंगा। तो प्रोविजनिंग्स आपको अपनी बुक्स में उनकी करनी पड़ेगी और कंप्लायंसेस भी उनका करना पड़ेगा। ओके। सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो वो एप्लीकेबल आपके ऊपर तब होगा 10 एंड अबाउ आपके मिनिमम होना चाहिए। जैसे डोमेस्टिक वर्कर जो भी घर में काम कर रहे हैं, तो वो केस में एप्लीकेबिलिटी वहां पर डाउन हो जाती है, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डाउन है, कम है, तो वो केस में मेरे पास जनरली एप्लीकेबल नहीं। बट जैसे कि जो गवर्नमेंट के नॉर्मल प्रोविजन है, लाइक सैलरी का पेमेंट ऑनलाइन करना है या उसके वेलफेयर की बात करनी है, तो इतना तो आपको मिनिमम उनका मेंटेन करना ही पड़ेगा। नहीं, अब एक चीज यहाँ पे है, जैसे पीस रेटेड जो इम्प्लॉयज होते हैं, लाइक पीस रेटेड मतलब आप गारमेंट्स इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखोगे तो बहुत सारे पीस रेटेड एम्प्लॉयज होते हैं। तो तो उसके वर्कर की जो डेफिनेशंस होती है उसी में सभी टाइप के एम्प्लॉइज कवर हो जाते हैं, चाहे परमानेंट वर्कर, कैजुअल वर्कर, डेली वर्कर, पीस मेल, रेट ऑफ वर्कर्स, सभी टाइप के लोग कवर हो जाते हैं। तो जो आपके पीस मेल पे काम करें, जो पर्टिकुलर गारमेंट इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो कि उसमें मैं 65 बना हुआ जितना पैसा मिलेगा, तो उन पर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल। अगर वो पर्टिकुलरली आपके लिए काम कर रहा है, एक्सक्लूसिवली आपके लिए काम कर रहा है, किसी और का काम नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर ये लेबर लॉ के प्रोविजन एप्लीकेबल है। बट अगर वो नॉन एक्सक्लूसिवली कैटेगरी में कर रहा है कि मल्टीपल एम्प्लॉइज को सर्व कर रहा है, मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है, देन वहां पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज ए प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्व कर रहा है। यहाँ पर जो रूल्स में निकल के आया है वो एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन निकल कर आया है। ठीक है। सर मेरा एक तो क्वेश्चन, यस सर मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उन लोगों को टेंडर भरने के लिए रजिस्ट्रेशन वो लोग लेते हैं पीएफईएसआई का, बट उनके ऊपर एप्लीकेबल मैंडेटरी नहीं होता है, तो मैं मतलब आपको जैसे आगे किसी फर्दर के। क्लेरिफाई करूंगा। हमारे जो ओके। पीएफ और ईएसआईसी के प्रोविजंस आने वाले हैं, तो उसमें मैं बताऊंगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में जो रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो उससे कैसे निपटना है, वो मैं आगे फर्दर क्लेरिफाई करूंगा। यस एनी अदर? ठीक है, ठीक है। एक लास्ट डाउट ये रह गया था, जो हमारे पीस रेटेड एम्प्लॉयज हैं उन पे फिर मिनिमम वेजेस वाला भी एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी? यस, मिनिमम वेजेस मतलब अगर आपके ऊपर कोड का प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गया तो आपके ऊपर सभी प्रोविजंस एप्लीकेबल है, क्योंकि मिनिमम वेजेस के जो प्रोविजन है 10 एंड अबाव के केस में एप्लीकेबल है। मिनिमम 10 एम्प्लॉइज आपके पास होने ही चाहिए, तो अगर आपके पास 10 एंड अबाव एप्लीकेबल ऑलरेडी है तो वो केस में आपके प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके ओके, गॉट इट अंकुश। एनी अदर डाउट? अदरवाइज वी आर प्रोसीडिंग नेक्स्ट।
अब अगर हम डिटेल में बात करें कि किस कोड में क्या प्रोविजंस है, किस कोड में क्या चेंजेस हो गया, तो सबसे बड़ा हमारे पास जो चेंजेस है एज ए सीए, एज हम क्लाइंट्स को क्या पिच कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स के केस में एमएसएमई इंडस्ट्री हो चाहे लार्ज कॉर्पोरेट्स हो, वहां पर क्या प्रोविजंस चेंजेस होंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारा आता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जो एम्प्लॉय के वेलफेयर की बात करता है। इसमें हमारे जो 9 एग्जिस्टिंग एक्ट्स थे लाइक पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी, तो ये प्रोविजंस इसमें कवर होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पीएफ के प्रोविजंस में क्या चेंजेस है, तो पीएफ हमारा जो एप्लीकेबल है, अगर हमारे पास 20 एंड अबाउ एम्प्लॉइज हैं तो कंपलसरी हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना होता है। बट बिलो के केस में वॉलेंटरली हम लोग कवर कर सकते थे, जिसके पास बिलो 20 एम्प्लॉइज है तो वॉलेंटरली हम लोग कवर कर सकते थे। तो यहाँ पर पहले था शेड्यूल एस्टेब्लिशमेंट, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का केस था, शेड्यूल्स का केस था, दैट मींस द फैक्ट्री के ऊपर कंपलसरी एप्लीकेबल था, एस्टेब्लिशमेंट्स वहां पर स्कीप हो जाते थे। अभी गवर्नमेंट ने उसको रिमूव करते हुए यूनिवर्सल एप्लीकेबल कर दिया है, और वो शेड्यूल का डेफिनेशन हटाते हुए एस्टेब्लिशमेंट्स वहां पर कवर कर दिया। दैट मींस अगर आप कुछ भी हो, चाहे आप सीए की फर्म्स हो या कुछ भी आप एस्टेब्लिशमेंट्स हो, किसी भी टाइप का, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके पास कवर हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी कर दिया गया। तो जो डिपार्टमेंट के लिटिगेशन होते हैं कि आपके ऊपर एप्लीकेबल, हम बोलते थे कि नहीं एप्लीकेबल नहीं है, तो डिस्प्यूट्स यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। 20 एंड अबाउ के केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गया, बिलो के केस में वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईएसआईसी के केस में, तो ईएसआईसी के केस में पहले प्रोविजंस था शेड्यूल नोटिफाइड एरिया का कॉन्सेप्ट, मतलब हर स्टेट में गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा था कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में ईएसआईसी एप्लीकेबल होगा, ये डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर उसको रिमूव करते हुए यूनिवर्सल एप्लीकेबल कर दिया कि नोटिफाइड एरिया का कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं और यूनिवर्सली ईएसआईसी सबके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपके पास 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो कंपल्सरी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, 10 से कम एम्प्लॉइज हैं तो वॉलेंटरली आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। पहले यहाँ पर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ईएसआईसी में, मिनिमम आपके पास 10 एम्प्लॉइज होना ही चाहिए तभी आपको ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन मिलता था। अब वो प्रोविजन चेंज करते हुए उन्होंने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी डाल दिया। आगे गवर्नमेंट ने फर्दर बोला है कि अगर आप ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हो जो हजार्डियस एक्टिविटीज है, एम्प्लॉय की हेल्थ पे साइड इफेक्ट्स कर सकती है, तो वहां पर अगर आपके पास सिंगल एम्प्लॉयज भी है, अगर एक एम्प्लॉय भी है, वो केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब यहाँ पर हम एक जो हम लोगों को जनरली प्रोविजंस पेश करने पड़ रहे हैं, जनरल हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही है कि हम कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो 2020 के बाद एमसीए पोर्टल ने एजाइल प्रो फॉर्म के थ्रू ऑटोमेटिकली पीएफ, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन और प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन कुछ स्टेट्स में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन आ जाता है। तो क्या वो केस में हम लोगों को कंपलसरी कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे? जी नहीं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने फर्दर पहले भी क्लेरिफाई कर रखा था कि एक एजाइल प्रो फॉर्म के थ्रू हम लोग आपको रजिस्ट्रेशन तो दे रहे हैं, पर रजिस्ट्रेशन देने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपके पास पीएफ के जनरल प्रोविजंस के हिसाब से 20 एंड अबाउ एम्प्लॉइज हैं तो आप कंपल्सरी कवर कर लो और कंप्लायंसेस करना स्टार्ट कर दो। बट अगर आपके पास एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ ही क्रॉस नहीं हो रही, 20 हो ही नहीं रही है, तो वो केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और आप स्किप कर सकते हो। बट वॉलेंटरली अगर आप कवर करना चाहते हो, अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट करो, एग्रीमेंट अपलोड करो और उसको कवर करो। तो जब तक हम लोग पीएफ लॉगिन नहीं करते हैं तब तक हमारा पीएफ एक्टिवेट नहीं होता है। बट सब्जेक्ट टू कि हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर क्रॉस नहीं होना चाहिए 20 एम्प्लॉइज की, तो पीएफ के प्रोविजंस वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। आगे हम बात करें ईएसआईसी की, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन हमें दे दिया तो क्या प्रोविजंस हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो गए, हम लोग को कवर करना पड़ेगा? जी नहीं। ईएसआईसी कोड यहाँ पर, ईएसआईसी एक्ट यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर आपके पास 10 एंड अबाउ एम्प्लॉइज थे तो 10 एंड अबाउ एम्प्लॉइज के केस में आपके पास कंपलसरी कंप्लायंसेस आपको करने की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आपके पास बिलो एम्प्लॉइज है तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, वो केस में आपको यहाँ पर स्किप कर सकते हो। आपको डोरमेट फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है। जैसे ही आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, फर्स्ट 6 मंथ्स का जो पीरियड आपको दिया जाता है दैट इज द डोरमेट पीरियड, वहां पर आपको ईएसआईसी की कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद क्या होगा, तो आपके पास फर्दर यहाँ पर चीज निकल कर आ रही है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है फर्दर, तो भी आपको यहाँ पर उस डोरमेट पीरियड को लॉग इन करके एक्सटेंड करना है। उस डोरमेट पीरियड को फर्दर 6 मंथ्स के लिए आपको एक्सटेंड कर देना है। अगर आपने एक्सटेंड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर ईएसआईसी का कंप्लायंसेस करने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आपको यहाँ पर अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आपको नील रिटर्न फाइल करना है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, मोर देन 10 एम्प्लॉइज है, तो आपको कंपल्सरी उसका कवरेज करना पड़ेगा और उसको कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम नए कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, गवर्नमेंट का टेंडर लेने के लिए हम लोग कंप्लायंसेस कर ले देते हैं। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं था,
तो आप उसको पीएफ के केस में तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, आप लॉगिन मत करो, एप्लीकेबल नहीं होगा। और अब फिर भी फर्दर क्लेरिफाई करने के लिए आप डिपार्टमेंट को लेटर सेंड कर दो कि मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ईएसआईसी के केस में ध्यान रखें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में आप एक्सटेंड करें उस डोरमेट पीरियड को, एक्सटेंड करना नहीं भूलें। और अगर बाय द वे आपने एक्सटेंड नहीं किया है तो आप यहाँ पर उसका कंप्लायंसेस कंपलसरी करें, भले ही आप नील रिटर्न फाइल करें अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं तो, बट कंप्लायंसेस कंपलसरी करें। जिन लोगों ने टेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन ले लिया है, बाद में टेंडर अलॉट नहीं हुआ, तो अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट ऐसी आपकी नई नई फॉर्म बनाई, टेंडर नहीं मिला, काम ही नहीं मिला, तो आपका आगे काम नहीं करने वाले, तो आप उस लाइसेंस को सरेंडर कर दें, एप्लीकेशन करें सरेंडर की। गवर्नमेंट ने सरेंडर की जो प्रोसेस थी उसको इजी कर दिया है, पहले सरेंडर करना इजी नहीं था, अभी गवर्नमेंट ने उसको चेंज करते हुए इजी कर दिया है कि अगर आप फर्दर क्लेरिफाई करते हैं कि मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, सरेंडर का प्रूफ सबमिट करते हैं कि मैंने दूसरे लाइसेंस भी क्लोज कर दिए, जीएसटी भी क्लोज कर दिया है, तो आपका यहाँ पर पीएफ ईएसआईसी भी क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये पीएफ ईएसआईसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे। बाकी जो रेट थी 12% पीएफ की, ईएसआईसी की 4%, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जो यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हुई है वेजेस की, वो मैं आगे फर्दर क्लेरिफाई करूंगा कि किस पर क्या प्रोविजन कैसे कैलकुलेशंस होगी, तो वो आगे डिटेल में रहेगा। बाकी जो प्रोविजंस थे वो सेम कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और जो अभी एग्जिस्टिंग, जब तक न्यू लेबर कोड्स एप्लीकेबल नहीं हो जाता, मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होने वाला है, तब तक एग्जिस्टिंग जो प्रोविजंस है पीएफ और ईएसआईसी के, वो कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ईएसआईसी में मैं एक फर्दर और क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, जो नर्सिंग होम्स है या डॉक्टर्स हैं, जिनको कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम रजिस्ट्रेशंस दे दिए गए थे ईएसआईसी के, पहले उन पर ईएसआईसी कोड एप्लीकेबल नहीं था, तो प्रोविजंस उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते थे। गवर्नमेंट ने न्यू लेबर कोड्स में उनको भी कवर कर दिया, तो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस यहाँ पर सुओ मोटो कैंसिल कर दिए गए हैं। आपको नया वापस फ्रेश रजिस्ट्रेशंस ऐसे केसेस में लेना है। ईएसआईसी के फ्रेश रजिस्ट्रेशंस ऐसे इंडस्ट्री के केस में एप्लीकेबल होंगे और नया प्रोविजंस के हिसाब से उनको कंप्लायंसेस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आगे अगर मैं बात करूं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन यहाँ पर चेंज करके सेंट्रल गवर्नमेंट कर दी गई कि होल एंड सोल जो भी रेस्पॉन्सिबल है, जो भी प्रोविजंस बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट का उसमें कोई पार्ट नहीं रहेगा। ऑथोराइज ऑफिसर जो भी होंगे वो बोर्ड के द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर्स होंगे उसमें, और बाकी कोई किसी को कवर नहीं किया जाएगा। आगे फॉर अगर हमारा क्वेश्चन निकल कर आता है कि बीओसीडब्ल्यू, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो भी इंडस्ट्री है जो इसका बिल्डिंग्स का काम करती है, उसके केसेस में गवर्नमेंट ने फर्दर क्लेरिफाई किया है कि बीओसीडब्ल्यू से किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कुछ लिटिगेशन थे उसको मिनिमाइज करते हुए उन्होंने बोल दिया है कि जो इंटरनेट टावर्स हैं, जो इंटरनेट टावर बना रहे हैं या जो सोलर पैनल लगाने का काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वैसे केसेस पर भी बीओसीडब्ल्यू से एप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि बीओसीडब्ल्यू की जो डेफिनेशन थी पहले वहां लिखा हुआ था कि आप अगर सिविल का काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, तभी आपके ऊपर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने फर्दर क्लेरिफाई कर दिया। नेक्स्ट, अगर आपके पास पिछले 12 महीने में 10 से कम एम्प्लॉइज थे, तब भी आपके ऊपर बीओसीडब्ल्यू से एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आप फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है, फैक्ट्री बन गए, फैक्ट्री कब बनता है, जब आपके लिए नॉर्मल जो आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो खत्म हो गया और आपको ऑपरेशनल मेंटेनेंस का लाइसेंस मिल गया, फैक्ट्री ऑपरेट करने का लाइसेंस मिल गया, तो फिर वहां पर बीओसीडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, तो बीओसीडब्ल्यू से वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा इसके केस में। साथ में एक और चीज निकल कर आ रही है कि जिन्होंने रेजिडेंशियल कैपेसिटी में कंस्ट्रक्शन किया है, जिनका कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 50 लाख रुपए से कम है, तो वहां पर बीओसीडब्ल्यू से एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई कंस्ट्रक्शन किया है, अपने पर्सनल के लिए घर बनाया है, बट उसकी कंस्ट्रक्शन को 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो वो केसेस में भी आपको बीओसीडब्ल्यू से भरना पड़ेगा। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की डेफिनेशन सेम कर दी गई है सारे केसेस में, चाहे वो पीएफ हो, ईएसआईसी हो, ग्रेचुइटी हो, कुछ भी एक्ट हो, सबके लिए सेम रहेगी। पहले यहाँ पर हर एक कोड के हिसाब से हर एक चीज चेंजेस थी। अब नेक्स्ट हमारा जो बिग टॉपिक आता है, हमें हमारे क्लाइंट्स का जो पिच करना है, क्लाइंट्स का जो रिस्ट्रक्चरिंग करवानी है, जो नए प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, अपॉइंटमेंट लेटर में क्या देना पड़ेगा, दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ द वेजेज। क्योंकि वेजेस की डेफिनेशंस यहाँ पर चेंज कर दी गई है। पहले कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अपने हिसाब से 20% बेसिक पे सकता था, 30% बेसिक लगता था। अभी गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि आपका जो भी वेसीटीसी है, जो भी आप अमाउंट उसको ऑफर कर रहे हो एज अ फिक्स, उसका कंपलसरी 50% आपको बेसिक डीए और रिटेनिंग अलाउंसेज में रखना कंपलसरी। क्या तीनों कंपोनेंट में रखें? तीनों में भी आप रख सकते हो। अगर तीनों में नहीं रखते हो तो बेसिक में तो 50% आपको रखना ही पड़ेगा। बाकी का जो 50% है, आप ये जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं इनमें आप रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी अलाउंसेज में रखते हो तो आपका वापस वो अमाउंट बेसिक में ऐड हो जाएगा। लाइक मैं अगर मैं बात करूं कि मैंने किसी को 10 लाख रुपए का सैलरी ऑफर किया,
10 लाख रुपए में से मेरा 50,000 रुपए का ग्रेचुटी का प्रोविजन है साल भर का। तो मेरे पास यहाँ पर जो नेट अमाउंट निकला 9,50,000 और उस 9,50,000 का जो 50% है वो मुझे 4,75,000 रुपए कंपल्सरी बेसिक में रखने पड़ेंगे, और बाकी का 4,75,000 रुपए मैं बोनस में रखूं, पीएफ ईएसआईसी का कंप्लायंस उसमें आ जाएगा, कन्वेंस अलाउंस उसमें आ जाएगा, अदर अलाउंस उसमें आ जाएगा, एचआरए इस फॉर्म में रख सकता हूँ। बाई द वे, अगर मैंने जो ये एक्सक्लूडिंग अमाउंट है, एक्सक्लूडिंग जो कैटेगरी है, इसका 4,75,000 की जगह 5.5 लाख रख दिया, तो वैसे केसेस में क्या होगा, तो आपने जितना भी अमाउंट 50% से एक्सेस रख दिया है उतना डिफरेंस आपका वास्तविक बेसिक अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पर जो बेसिक की डेफिनेशन आ गई कि 50% बेसिक रखना कंपल्सरी है, तो आपकी जो भी पीएफ के प्रोविजंस, ईएसआईसी के प्रोविजंस, ग्रेचुटी के प्रोविजंस जो भी एप्लीकेबल होंगे, लिव एनकेसमेंट्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, वो इस 50% फर्स्ट वाले 50% पर ही एप्लीकेबल होंगे। कंपनीज के केस में एक चीज निकल कर आ रही है कि क्या अब जो हमारा बेसिक इंक्रीज हो गया तो पीएफ हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी क्या, पीएफ का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा क्या? तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर, पीएफ डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया कि जो कोड में, जो वेक्ट में की जो लिमिट है 15,000 रुपए की जो सीलिंग लिमिट है वो कंटिन्यू रहेगी। आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करना है 15,000 का 12%, 1,800 रुपए रखना कंपल्सरी है। अगर आप 1,800 रुपए से ज्यादा रखना चाहते हो, दैट इज द वॉलेंटरली, आपको रिक्वायरमेंट अप टू 1,800 रुपीज की, उससे ऊपर आप वॉलेंटरली कवर कर सकते हो। ईएसआईसी के केस में पहले जो ग्रोस वेजेस पर ईएसआईसी एप्लीकेबल था कि अगर मेरी ग्रोस वेजेस 21,000 रुपए या बिलो है तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी यहाँ पर ईएसआईसी के अंदर वो वेज की डेफिनेशन चेंज करते हुए बेसिक कर दी गई है। तो अगर मेरा ग्रोस वेजेस 42,000 रुपए है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि मेरी बेसिक वेजेस 21,000 रुपए होगी ऐसे केसेस में, तो अगर मेरा 42,000 रुपए तक का भी कोई एम्प्लॉय, तो वो ईएसआईसी में कवर हो जाएगा। साथ में अगर हमारे ग्रेचुटीज के प्रोविजंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि बेसिक का डेफिनेशन चेंज हो गया है, लिव एनकेसमेंट्स के प्रोविजन चेंजेस हो जाएंगे। अब इसी के साथ में यहाँ पर इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट आया है कि ग्रेचुटी और लिव एनकेसमेंट के केस में कैसे करना है, प्रोविजनिंग कैसे करनी है बुक्स के केस में, Q3 और Q4 के फाइनेंशियल्स में क्या इंपैक्ट उसका आएगा। तो उसका भी मैं आपको हाईलाइट्स यहाँ पर देता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने जो गाइडेंस नोट दिया है उस केस में क्या एप्लीकेबल है। इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया है कि जो जिनके ऊपर इंटरिम फाइनेंशियल्स एप्लीकेबल है, जो लिस्टेड कंपनीज है या अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल्स पब्लिश करती है, उनको एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए न्यू लेबर कोड्स की डेफिनेशंस कवर करनी है और ग्रेचुटी और लिव एंगेजमेंट्स का प्रोविजनिंग अपने बुक्स में Q3 और Q4 के फाइनेंशियल्स में दिखाने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या इंस्टीट्यूट ने बोला है, तो यहाँ पर वही 29 लेबर कोड्स के चेंजेस की बात की गई है। 50% बेसिक रखना कंपल्सरी कर दिया है। ग्रेचुटी कर दिया है कि आपको जो ग्रेचुटी का प्रोविजनिंग करवाना है, वैल्यूएशन जो करवानी है वो 50% की डेफिनेशंस पे करवानी है। ग्रेचुटी और लिव एंगेजमेंट्स का प्रोविजन 21 नवंबर से ही एप्लीकेबल हो गया है, तो इसलिए आपके केस में वो आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें कि फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के केस में ग्रेचुटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के केस में ग्रेचुटी पहले एप्लीकेबल नहीं थी, अब आपको अपनी बुक्स में प्रोविजनिंग करवानी है। अकॉर्डिंगली फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के केस में भी 1 ईयर के केस में आपको ग्रेचुटी का प्रोविजन करना है। अगर हम बात करें आगे फर्दर की उसका क्या इफेक्ट्स मेरे फाइनेंशियल्स में होगा, तो अगर हम गाइडेंस नोट की बात करें तो गाइडेंस नोट बोलता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो वेजेस की डेफिनेशन चेंज करी, वो चेंजेस करी पर्टिकुलर फ्यूचर्स के लिए। मतलब मेरा पास सर्विस कॉस्ट हो गया वो, कि गवर्नमेंट का अजम्पशन ही यहाँ पर गवर्नमेंट की डेफिनेशन ही चेंज हो गई। मैंने यहाँ पर कोई अजम्पशन चेंज नहीं करी, गवर्नमेंट की डेफिनेशन ही चेंज हो गई, जिसका इफेक्ट मेरे को आगे में फ्यूचर पड़ेगा। तो दिस विल बी पास सर्विस कॉस्ट, टोटल मेरे लिए जो वो होगी वो पास सर्विस कॉस्ट होगी, और मुझे इमीडिएटली वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज करनी है। मतलब मेरे पास एग्जिस्टिंग ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनका मैं आज तक प्रोविजनिंग नहीं करता था, एफटीज के केस में मैं बात करूं एप्लीकेबल ही नहीं थी, तो अब मेरे केस में वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो वो मेरा गवर्नमेंट की अजम्पशन चेंज करने की वजह से, गवर्नमेंट का वेजेस का डेफिनेशन चेंज करने की वजह से एप्लीकेबल हो गया, तो दैट विल बी द पास सर्विस कॉस्ट और इमीडिएटली एप्लीकेबल टू योर, अगर इमीडिएट आपके पीएनएल में उसका इफेक्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इन डेज आईगेप 15 क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर आपका वेस्टिंग पीरियड ओवर हो गया, वेस्टिंग आपका पूरा हो गया है, लिव एंगेजमेंट्स का प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया, तो इमीडिएट आपको पीएनएल में रिकॉग्नाइज करना है उसका इफेक्ट। बट अनवेस्टेड पीरियड के केस में, जितना 2 साल बाद 3 साल बाद मेरा वेस्टिंग होने वाला है, वो केसेस में कैसे होगा, तो वहां पर आपको एसएलएम मेथड फॉलो करना है। गाइडेंस नोट बोलता है कि आपको एसएलएम मेथड फॉलो करना है और प्रपोर्शनेटली आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा ओवर द पीरियड्स।
सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजंस आपको करवाने हैं, और सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग आप जो करवाने हैं उसका फाइनेंशियल्स में कैसे इंपैक्ट देना है, तो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एक्चुअल अजम्पशंस कोई चेंजेस हुई है वो तो वो, अदरवाइज प्लान अमेंडमेंट लाइक द वेजेस का जो डेफिनेशन हो गया, तो इसका जो भी है वो इमीडिएट P&L में इफेक्ट जाएगा। अब मैं बात करूं कि अगर मेरा फाइनेंशियल्स Q1 का Q2 का चला गया, मेरा प्रोविजंस तो वहां पर भी एप्लीकेबल हो गया, अब जो फाइनेंशियल ऑलरेडी पब्लिश हो गए उसका मैं कैसे करूं, तो देट आर द इवेंट अपरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट्स, मतलब मेरी वो एक्टिविटीज है जो बैलेंस शीट पब्लिश होने के बाद निकल कर आई है, तो आपको उसमें कोई इफेक्ट उसका नहीं देना है, वो दोनों क्वार्टर का सारा इफेक्ट आपके Q3 के फाइनेंशियल्स और Q4 के फाइनेंशियल्स में आ जाना चाहिए। तो प्री नवंबर 2025 आपको ट्रीटिंग एज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, वो केस में आपको नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा वो एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगी, उसका एप्लीकेबिलिटी आपको सारा का Q3 और Q4 के फाइनेंशियल्स में इंपैक्ट उसका देना पड़ेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि इंटरिम फाइनेंशियल्स में आपको ग्रेच्युटी और लिव एनकेसमेंट्स का प्रोविजन नई डेफिनेशंस के हिसाब से करना है। साथ में अगर मैं बात करूं कि लीव बेनिफिट्स में क्या एप्लीकेबल होगा, तो लीव के डेफिनेशंस में भी बेसिक की वेजेस डेफिनेशन चेंज हो गई, तो बेसिक चेंज होने की वजह से मेरा जो लिव एंगेजमेंट्स का प्रोविजन है वो इंक्रीज होने वाला है, तो वो ऐसे पीरियड्स के लिए इंक्रीज होने वाला है जो पास्ट में अकर हो चुका, तो इमीडिएटली आपको पास्ट सर्विस कॉस्ट मानते हुए P&L में रिकॉग्नाइज करना है, P&L में सीधा उसका इंपैक्ट देना है। बट वो फ्यूचर्स के लिए है कि एम्प्लॉइज आज भी काम कर रहा है और एज अजम्पशंस आगे भी काम करेगा, तो ऐसे केसेस में आपको SLM मेथड बेसिस पे उसको रिकॉग्नाइज करना है ओवर द पीरियड्स। ओवर द पीरियड्स रिकॉग्नाइज करोगे तो आपके लिए यहाँ पर DTA क्रिएट होगा, डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट होगी, बिकॉज दीज आर द टाइमिंग डिफरेंसेस। तो ये इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट के हिसाब से मेंबर्स के लिए क्लेरिफाई किया है कि उसको फाइनेंशियल्स में क्या इंपैक्ट देना है। नेक्स्ट एक गाइडेंस नोट और थोड़े दिन पहले आया है, उसमें ICAI ने क्लेरिफाई किया है कि आप जब ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेंगे मार्च की, तब आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्लेरिफाई करना है कि क्या कंपनीज ने अपने बुक्स में प्रोविजनिंग कर लिया या नहीं किया, न्यू लेबर कोड्स को इम्प्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, न्यू जो वेजेस की डेफिनेशन है उसको इम्प्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, दूसरा जो नए अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्मेट जाना चाहिए कि वो किया है कि नहीं किया है। तो अपने मेंबर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर दी उन्होंने कि आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यहाँ पर उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मेंबर्स से आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लिया है कि नहीं लिया है, मेंबर बोर्ड ऑफ मेंबर्स उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्या उनका कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या उसका फ्यूचर फाइनेंशियल इंपैक्ट गोइंग कंसर्न अफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या उसका इंपैक्ट बढ़ा तो नहीं आने वाला है। तो मेंबर्स के अपने CA के मेंबर्स के ऊपर जो भी ऑडिट करने वाला है उसके ऊपर यहाँ पर इम्प्लीकेशंस कर दिया कि उनको ये ध्यान रखना है। ना हम लोग वापिस हमारे इस पर आते हैं, तो यहाँ पर वेजेस की डेफिनेशन हमारी चेंज हो गई थी। एक सिंपल से फॉर्मूला के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताऊंगा कि मान लीजिए मिस्टर ए है जो बेसिक वेजेस 15,000 के ड्रॉ करता है, DA उसका 6,000 रुपए है, रिटर्निंग अलाउंसेस 1,000 रुपी है, तो ऐसे केसेस में उसका हमारे यहाँ पर हो गया 22,000 रुपए, बाकी में अदर अलाउंसेस उसको लगभग 40,000 रुपए दे रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर CTC हो जाता है 62,000 रुपीज का। तो 62,000 का मेरा जो CTC हो गया उसका 50%, दैट इज 31,000 रुपीज मुझे यहाँ पर उसका बेसिक में रखना कंपल्सरी था, जबकि मैं 22,000 रुपए ही रख रहा था बेसिक DA और रिटर्निंग अलाउंसेस में। तो 9,000 रुपए जो मैंने कम रखा है वो वापस मेरा फर्दर एडबैक हो जाएगा, और मेरा जो प्रोविजन जो भी मुझे कंप्लाइंसेस करने हैं वो 31,000 रुपीज पर एप्लीकेबल होंगे, ना कि 22,000 रुपए पर। तो आपको सैलरी रिस्ट्रक्चर करते टाइम वो ध्यान रखना है। बट सैलरी रिस्ट्रक्चर के प्रोविजंस में आपको 10 नंबर और 11 नंबर से ग्रेचुटी और रिलीव एंकेसमेंट्स ये कवर नहीं होंगे। आपका जो भी CTC है उस CTC में ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 50% बेसिक में रखना है। प्रायोरिटीज दे दी गई है कि जो अगर आप कंपनी लिक्विडेशंस में जा रहे हो, आप कंपनी वाइंड अप कर रहे हो, तो गवर्नमेंट के जो ड्यूज है PF ESIC को उसको प्रायोरिटीज रहेगी। पहले यहाँ पर क्रेडिटर्स के केस में वो एप्लीकेबल था, अब यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर उसको प्रायोरिटीज चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पहले अगर ESIC और PF के केस में अगर आपको ट्रिब्यूनल में केस फाइल करना है, अपील फाइल करनी है, तो मिनिमम 75% आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट का डिपॉजिट करवाना पड़ता था, तभी आपकी एप्लीकेबल अपील चलती थी। अब इसको रिड्यूस करते हुए उनको 25% कर दिया गया है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट का आप 25% डिपॉजिट करो और वहां पर आपको अपील फाइल हो जाएगी। लिमिटेशन पीरियड जो होता था, वो ऑर्डर जो आपको इश्यू किया उसे 60 डेज कवर होंगे। साथ में आपको यहाँ पर जो भी प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स हैं उनके प्रोविजन यहाँ पर आपको कवर करने पड़ेंगे, उनको मेजर बेनिफिट्स दे दिया गया है, उनके सोशल सिक्योरिटीज की बात कर दी गई है, उनके 1 या 1.5% उनके केस में रहेगा।
पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी की अगर हम बात करें कि ग्रेचुटी का जो प्रोविजन था परमानेंट एम्प्लॉयज के केस में वो 5 साल का था, 5 साल ही आगे कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एफटीई के केस में ही ओनली प्रोविजन चेंजेस हुए हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो 1 ईयर्स के बेसिस पे एम्प्लॉय आप हायर करते हो, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हायर करते हो, वो केसेस में ही आपके यहाँ पर ग्रेचुटी के प्रोविजन चेंज होंगे। ग्रेचुटी की जो कैलकुलेशन थी 15/26 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सर्विस डेज, वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंजेस किया कि वर्किंग जर्नलिस्ट अगर हैं जो कि प्रिंट मीडिया या इसमें इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहां पर 5 साल की जगह 3 साल में ग्रेचुटी एप्लीकेबल हो जाएगी। साथ में जो सीलिंग लिमिट थी कोड की, वो 3.5 लाख रुपए की थी, उसको इंक्रीज करते हुए इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सिमिलर कर दिया कि 20 लाख रुपए तक ग्रेचुटी आप एप्लीकेबल से 20 लाख रुपए तक आपको दे दी जाएगी। मटर्निटी के केस में यहाँ पर मेडिकल जो बोनस दिया जाता था उसको चेंजेस करते हुए, उसको इंक्रीज करते हुए 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया गया है। साथ में आपको जो सीलिंग लिमिट थी, मैक्सिमम लिमिट थी 20,000 रुपए की, उसको रिमूव करते हुए उन्होंने उसको हटा दिया है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय है, वो केस में क्रेच फैसिलिटी रखना कंपल्सरी। क्रेच फैसिलिटी मतलब जो भी वुमन एम्प्लॉयज है, अगर उसका कोई छोटा बच्चा है तो वहां पर उसका एक डे केयर फैसिलिटीज होती है, वहां पर वो हर 4-4 घंटे में अपने बच्चे को देख सकती है वर्किंग कंडीशंस में। तो यहाँ पर उन्होंने सिंपलाइज करते हुए बोल दिया है कि अब फुल फैसिलिटीज आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपके नियर बाई में 3-4 किलोमीटर में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या कोई एनजीओ या प्राइवेट किसी का भी इंस्टीट्यूशन का भी क्रेच है, तो आप उसको यूज कर सकते हो और एज ए पूल फैसिलिटीज आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर लिबरलाइज दिया गया है। एक यहाँ पर चेंजेस किया गया है, एम्प्लॉयर के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर दी गई कि अगर कोई एम्प्लॉय जॉब के लिए अपने घर से निकला या अपना वर्किंग आवर्स कंप्लीट करके वापस घर जा रहा है और इन बिटवीन कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो एम्प्लॉयर की यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज मानी जाएगी और उसका इलाज कराना, उसका मेडिकल बेनिफिट्स, उसके इंश्योरेंस कवर सब एम्प्लॉयर को करने पड़ेंगे, उसको यहाँ पर स्किप नहीं किया जा सकता। साथ में अगर हम बात करें कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ वेजेस, तो बीओसीडब्ल्यू में थोड़ा सा फर्दर क्लेरिफाई किया है कि कॉस्ट ऑफ लैंड, साथ में अगर आपको कुछ भी कंपनसेशन एम्प्लॉयज को मिलता है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो वे ऐसी चीजें यहाँ पर कवर नहीं होगी, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा डेफिनेशंस में। इंटरेस्ट की रेट को रेशनलाइज कर दिया गया है कि जहां पर इंटरेस्ट हमारे अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग थी। पीएफ में कुछ रेट से 2% पर मंथ के लगता था, 24% की जो रेट थी उसको डाउन करते हुए उन्होंने बोल दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो रेट रहेगी। तो लगभग वो इनकम टैक्स की जो रेट है 18% इंटरेस्ट की रेट, उसी के लगभग एप्लीकेबल होने वाला है। अब वो 24% से रिड्यूस करते हुए उन्होंने 18% कर दिया है। साथ में जब आप बीओसीडब्ल्यू सेस अब पे करोगे, तो बीओसीडब्ल्यू सेस आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे, जैसे हम इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स बेसिस पे पेमेंट करते हैं, वैसे ही सेम आपको बीओसीडब्ल्यू सेस का सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे पेमेंट करना है। हर एक रिटर्न को डिपार्टमेंट स्क्रूटनी में नहीं लेगा, जैसे इनकम टैक्स 5-6% केसेस को स्क्रूटनी में लेता है, सेम वैसे केसेस यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको फर्दर इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बोलते हुए बोलता है कि हम इंस्पेक्टर राज खत्म करते हैं और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे, मतलब आपको गाइड किया जाएगा, इंस्पेक्टर आपको गाइड किया रहेगा कि आपके कंप्लाइंसेस कहाँ वीक है, आपको कहाँ इनको और कंप्लाइंसेस को रिक्वायर करने की रिक्वायरमेंट है। तो इंस्पेक्टर राज यहाँ पर खत्म करने की गवर्नमेंट बात कर रही है। साथ में एक और बड़ी चीज निकल कर आ रही है कि आपको यहाँ पर अगर आपके कोई डिफॉल्ट है, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशंस का केस एप्लीकेबल होने वाला है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट वापस आपको फर्दर एक अपॉर्चुनिटी देगी और आपको बोला जाएगा कि आपके पास आज भी टाइम है कि कंप्लायंसेस कर ले। अगर आप कंप्लायंसेस कर देते हो तो आपको इम्यूनिटी दे दी जाएगी और आपका केस को क्लीन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रायर अपॉर्चुनिटी बिफोर प्रोसिक्यूशन से आपको दी जाएगी। बट अगर आपने एक बार अपॉर्चुनिटी अवेल कर ली और नेक्स्ट 3 ईयर्स में आपने वापस डिफॉल्ट कर दिया, तो आपके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट टाइम आपको प्रोसिक्यूशंस के केस में प्रायर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, आपके ऊपर जो रूल्स एप्लीकेबल है फाइन और इम्प्रिजनमेंट के, वो एप्लीकेबल होंगे। तो ये तो था हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। नेक्स्ट हमारा जो निकल कर आ रहा है दैट इज द कोड ऑन वेजेस 2019। उसमें यहाँ पर अगर हम बात करें कि लेबर लॉ में जो प्रोविजंस थे, पहले वो थे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के प्रोविजंस, वहां पर जो कोड फॉलो होता था वो कैलेंडर ईयर फॉलो होता था, उसको चेंज करते हुए सिमिलर करते हुए सारे एक्ट्स में उन्होंने बोल दिया कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो होगा और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से 31 मार्च ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। उसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, दैट आर द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, तो वो भी लोग कवर हो जाएंगे। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की डेफिनेशन सेम होगी, सभी कोड्स में सेम सिमिलरली एप्लीकेबल होगी। ये जो भी प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स पर कवर नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स के अपने ओन रूल्स होते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको जो अपने प्रोविजंस के माध्यम से और अपनी जो पीपीटी है उसके माध्यम से आपको ट्राई कर रहा हूँ कि क्या मेजर हाइलाइट्स, क्या हम लोग को ध्यान रखने हैं, क्या चेंजेस है, और साथ में मैं लास्ट में पिच करूंगा कि क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स एप्लीकेबल है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम अवेलेबल है जिसके थ्रू हम क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं अपने कंप्लायंसेस को नीट एंड क्लीन करने की। तो वो भी लास्ट में एक बार पिच करूंगा कि पीएफ में क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल है और ईएसआईसी में क्या स्कीम्स एप्लीकेबल है जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपने कंप्लायंसेस को क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट वेज रेट फिक्स करेगी, फ्लोर रेट डिसाइड करेगी, उस फ्लोर रेट को बेसिस पे मिनिमम वेजेस आपको फिक्स करना है। एक चीज और यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि 48 आवर्स वीकली काम करना कंपलसरी है। जो यहाँ पर ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट था कि कोई 10 घंटे काम कर रहा है, कोई 12 घंटे काम कर रहा है, वीकली में 70 घंटे काम कर रहा है, अब वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आप एम्प्लॉय से मैक्सिमम 48 आवर्स वीक काम करवा सकते हो। अब वो चाहे 4 दिन में सर्व करे, चाहे 5 दिन में सर्व करे या 6 डेज में सर्व करे, डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल कंसेंट। 48 आवर्स उसको सर्व करना है। हर 5 घंटे के बाद आपको इंटरवल ब्रेक देना पड़ेगा। 48 आवर्स से ज्यादा सर्व करने के बाद, अगर उसका 8 आवर्स पर डे सर्व ज्यादा सर्व करने के बाद जो भी ओवर टाइम है उसका डबल रेट से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। डबल रेट से आपको ग्रेजुएट ओवर टाइम के पेमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर डाल दी गई है। पेमेंटों का जो भी वेजेस है आपको ऑनलाइन ही पे करना है। डिजिटल मोड का जमाना है, केस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को केस में पेमेंट किया है, बाद में आप असेसमेंट में शो करते हो कि मेरे पास ये रिसिप्ट है, दैट आर नॉट वैलिड, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट फिक्स कर दिया गया कि डेली वेजेस के केस में एट द एंड ऑफ द डे, वीकली केस में एट द एंड ऑफ द वीक, और अगर मंथली है तो नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको पेमेंट करना है। जो रिजाइंड एम्प्लॉइज है उसके केस में T+2 डेज, मतलब वर्किंग डेज +2 डेज, मतलब पर वो प्रोविजंस उसी केस में एम्प्लॉइज के केस में एप्लीकेबल्स है जो प्रॉपर हैंडओवर दे रहा है, अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है, चाहे 30 डेज 60 डेज। अदरवाइज जो एब्सकॉन्ड करके चला गया, क्या उसके केस में भी ऐसे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? जी नहीं, उनके केस में प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ब्रेक किया है। तो यहाँ पर अगर कोई एब्सकॉन्ड करके जा रहा है तो वो केस में उसका F&F का प्रोविजंस जनरली एप्लीकेबल नहीं होगा। डिडक्शंस में थोड़ा सा डेफिनेशंस में चेंज कर दिया गया कि अगर एम्प्लॉयज की सैलरी से आप 75% तक डिडक्शंस कर सकते थे, उसको चेंज करते हुए डाउन करते हुए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 50% से ज्यादा डिडक्शंस नहीं किया जाएगा। उसमें लाइक पीएफ, ईएसआईसी, पीटी, टीडीएस, ये सब तो डिडक्शंस करना ही है। गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज का जो प्रीमियम था, एलआईसी की जो पॉलिसीज थी, अब आपका उसका डिडक्शंस नहीं कर सकते, दैट आर नॉट अलाउड। अगर आपने एम्प्लॉय का कोई डिडक्शन कर लिया पीएफ, ईएसआईसी का, टीडीएस का, ग्रेचुटी का, और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो वो केस में एम्प्लॉयर 100% एप्लीकेबल है, एम्प्लॉय को बेनिफिट से डिनाई नहीं किया जा सकता। बोनस के प्रोविजंस जो एग्जिस्टिंग थे वही सेम आगे कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है कि अगर आपके पास 20 एंड अबव एम्प्लॉइज है तो भी आपके पास बोनस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते थे, वो तभी आगे है। रेट जो डेफिनेशन थी, मिनिमम आपको 8.33% बोनस देना है, मैक्सिमम आपको 20% देना है, सब्जेक्ट टू एलोकेबल सरप्लस, वही प्रोविजंस आगे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। टाइम लिमिट जो होती है बोनस की, कि आपको ईयर एंड के बाद नेक्स्ट 9 मंथ्स में आपको पेमेंट करना है, तो अप टू 30 नवंबर तक आपको उसका बोनस का पेमेंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर बोनस के प्रोविजंस में कोई चेंजेस नहीं है, केवल थोड़ा सा एलोकेबल सरप्लस की जो कैलकुलेशंस थी उसमें चेंजेस यहाँ पर कर दिया गया है कि पहले जो एलोकेबल सरप्लस हम लोग कैलकुलेट करते थे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें एडबैक ऑफ द इनकम टैक्स प्रोविजंस और डेप्रिसिएशंस के प्रोविजंस, साथ में इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व और डेवलपमेंट अलाउंस का एडजस्टमेंट जो होता था, अब वो ऐसे पुराने जमाने की बात हो गई। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस, डेवलपमेंट रिबेट और डेवलपमेंट अलाउंसेस का कोई रिडक्शंस और कोई एडजस्टमेंट्स एडबैक यहाँ पर नहीं किया जाएगा। रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स आपको जो भी मेंटेन करने हैं सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन करने हैं, वर्चुअली मेंटेन करने हैं। नोटिस आपको जो भी डिपार्टमेंट से आएगा सबको वर्चुअली आएगा और उसका आपको रिप्लाई भी वर्चुअली फाइल करना। असेसमेंट सारे आपके फेसलेस होने वाले हैं। एम्प्लॉयज को आपको जो भी सैलरी स्लिप्स वगैरह इशू करनी है आप उसको मेल पे दीजिए, व्हाट्सएप पे दीजिए, तो डिजिटल विल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट हमारा जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्क कंडीशंस कोड आता है, जो एम्प्लॉयज की बात करता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, क्या कोड के प्रोविजंस होने चाहिए। तो हम लोग इसको समराइज फॉर्मेट में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें चेंजेस एप्लीकेबल है। बीओसीडब्ल्यू से इसमें यहाँ पर चेंजेस किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स की डेफिनेशन यहाँ पर चेंज कर दी गई है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को कवर कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर बोला गया है कि फैक्ट्री के केस में डेफिनेशन थोड़ी सी चेंजेस हो गई है, फैक्ट्री को लिबरलाइज किया गया है
कि अगर आप विदाउट एड ऑफ पावर, मतलब आपके केस में एड पावर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपकी जो लिमिट थी 20 से उसको इंक्रीज करते हुए 40 कर दी है कि 40 से ज्यादा एम्प्लॉइज अगर आपके पास होंगे तभी आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना है, अदरवाइज आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं। बट आप विद एड ऑफ पावर कर रहे हो, पावर के साथ अगर आप कर रहे हो, पहले जो लिमिट थी वो 10 एम्प्लॉइज की थी, उसको इंक्रीज करते हुए उन्होंने 20 एम्प्लॉइज कर दिया है कि 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज अगर आपके पास है एड ऑफ पावर के केस में, तभी आपको फैक्ट्री का लाइसेंस लेना है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फैमिली की डेफिनेशन यहाँ पर चेंज कर दी गई है। फैमिली की डेफिनेशन वाइड करते हुए सास ससुर को, डिपेंडेंट सिस्टर वगैरह को इंक्लूड कर दिया गया है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स कौन होंगे, तो गवर्नमेंट ने इसको चेंज डेफिनेशंस को क्लियरिफाई करते हुए बोला है कि एक एम्प्लॉय जो अपना स्टेट से दूसरे स्टेट में काम कर रहा है और जिसकी वेजेज 18,000 रुपए से कम है पर मंथ, 18,000 रुपीज से बिलो वेजेस वो ड्रॉ कर रहा है, वो केस में ही आईएसएमडब्ल्यू एम्प्लॉय उसको कवर किया जाएगा, माना जाएगा। अदरवाइज वो लोग आईएसएमडब्ल्यू कैटेगरी में नहीं आएंगे। ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, कॉन्ट्रैक्टर कंप्लायंसेस नहीं कर रहा है, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी जिसने कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को हायर कर दिया है। बट अगर वो कंप्लायंसेस नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को करना है और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी है। अब वो उसकी ऑन कॉल है कि वो डिडक्शंस एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर से करे या ना करे, बट उसको एम्प्लॉय की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और सोशल बेनिफिट्स की बात करनी है, अदरवाइज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल बी रेस्पॉन्सिबल। अगर हम बात करें सेफ्टी कमेटी की, तो कुछ ऐसे सब एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनको सेफ्टी कमेटी रखना कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप फैक्ट्री हैं तो आपके पास 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज अगर आपके पास काम कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी कमेटी बनानी है। अगर आप हजारडिस एक्टिविटीज का काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय के डिस हेल्थ के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो आपको 250 एंड अबव एम्प्लॉइज के केस में ही सेफ्टी कमेटी बनानी पड़ेगी। बीओसीडब्ल्यू, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप कर रहे हैं तो 250 एंड अबव एम्प्लॉइज के केस में आपको सेफ्टी कमेटी बनानी है। अगर आप माइंस के हैं तो माइंस के केस में 100 एम्प्लॉइज के करने के केस में आपको सेफ्टी कमेटी की रिक्वायरमेंट है। वीकली ऑफ आपको देना, वीकली ऑफ के प्रोविजंस पहले भी स्टेट एक्ट के हिसाब से थे, आगे उसको भी कंटिन्यू कराया कि वीक में एक वीकली ऑफ देना कंपल्सरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्स्ट्रा वेजेस ऑफ ओवर टाइम की, आपको डबल रेट से पेमेंट करना है 48 आवर्स वीकली काम करने के बाद। जो भी एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा काम किया उसको डबल रेट से करना कंपलसरी है। नाइट शिफ्ट में वुमेन्स को अलाउ कर दिया गया है, सारे इंडस्ट्री में अप्लाई कर दिया गया। पहले ये प्रोविजंस केवल फैक्ट्रीज एक्ट पे एप्लीकेबल थे, उसको एनहांस करते हुए उन्होंने ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स कवर कर दिया गया। डेफिनेशंस मतलब ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स की यहाँ पर कर दिया गया है। साथ में यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि कोई एक एम्प्लॉय एक कंपनी में काम कर रहा था, आगे वो चेंज करते हुए साथ में दूसरी कंपनी में भी काम कर रहा है। लाइक वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट में कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम में कंपनीज पे काम कर रहे हैं, साथ में कुछ असाइनमेंट दूसरे भी हैंडल कर रहे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉइज को यहाँ पर कवर नहीं किया जाएगा। एक एम्प्लॉइज अगर एक एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है तो दूसरी जगह वो काम नहीं कर सकता, अलाउड नहीं होगा। एनुअल लीव के प्रोविजंस में यहाँ पर चेंज किया गया है कि अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, लास्ट ईयर में 250 एंड अबाउट डेज सर्व किया है तभी आपके ऊपर लीव एप्लीकेबल है। उसको रिड्यूस करते हुए उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर में अगर आपने 180 डेज काम किया है मिनिमम, तो आपके ऊपर लीव के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे और आपको उस एम्प्लॉयज को लीव देना। अब लीव कितनी देना है, तो यहाँ पर उन्होंने फर्दर क्लेरिफाई किया कि वर्कर्स की डेफिनेशंस को उन्होंने बोला है कि 18,000 एंड अबाउ जिसकी सैलरी है वो एम्प्लॉयज यहाँ पर कवर नहीं होंगे, वो लोकल ओपन एस्टेब्लिशमेंट्स के हिसाब से कवर होंगे। बिलो जिसकी सैलरी है 18,000 एंड बिलो जिसकी सैलरी है वही एम्प्लॉयज यहाँ पर कवर होंगे। और ऐसे केसेस में 20 दिन पर एक लीव देना कंपल्सरी है। दैट मींस 18 लीव साल भर की आपको उसको देनी पड़ेगी प्रपोर्शनेटली जो भी एप्लीकेबल है। साथ में कैरी फॉरवर्ड और लिव एंकेजमेंट्स के प्रोविजन ऐसे उस पर एप्लीकेबल होगी। अब जो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 18,000 से ज्यादा उसके केस में किया, तो ऐसे एम्प्लॉय जिनकी वेजेस 18,000 एंड अबाव है उस पर लोकल सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और लिव के प्रोविजंस उसको उसी हिसाब से करना, लाइक 30 डेज, और लिव एंकेजमेंट्स के जो भी प्रोविजंस है 45 डेज एंड अबाव, तो वो केस में उसको लोकल सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट से फॉलो करना है। साथ में यहाँ पर एक थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस हम लोग को लेना पड़ता था अगर हमारे पास 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। अब उसको रिड्यूस करते हुए उन्होंने बोल दिया है, उसको चेंज करते हुए एनहांस करते हुए उन्होंने बोल दिया कि अगर आपके पास 50 या 50 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस लेना है, अदरवाइज लेबर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें उन्होंने फर्दर क्लेरिफाई किया है कि आगे अगर आपके पास कंडीशंस फुलफिल करते हो, जैसे आप अगर आपने सिविल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस अप्लाई किया है, सिविल की डिग्री अगर आपके पास है तभी आपको यहाँ पर सिविल का लाइसेंस दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की अगर आप लाइसेंस अप्लाई करते हो
तो भी आपको इलेक्ट्रिकल डिग्री होने के बाद ही लाइसेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज आई कि यार मेरे पास अगर डिग्री नहीं है तो क्या मुझे लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में आपको वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस की देने की गवर्नमेंट ने बात करी है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है, कोई पर्टिकुलर काम आप करने वाले हो, उसका एक्सपीरियंस अगर आपको, तो आपको वर्क स्पेसिफिक लाइसेंस दे दिया जाएगा। और ये जो लाइसेंस होगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। जहाँ एनुअल रिन्यूअल के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते थे कि मुझे एनुअल रिन्यू करना पड़ता था कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस, अब ऐसे केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट 5 साल के लिए आपके पास लाइसेंस रहेगा। अगर आपका वर्क कंप्लीट होता है तो आप सरेंडर करिए और कंप्लीट करिए। अगर आपके पास 5 साल से भी ज्यादा काम करने वाला तो ही वो आपको रिन्यूअल अप्लाई कराना है रिन्यूअल्स के लिए, अदरवाइज उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर पेमेंट नहीं कर रहा है तो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी। साथ में अगर उसका जो भी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट है एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, जो भी उसने डिपॉजिट किया जा रहा है उससे उसका पेमेंट किया जा सकता है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को पीडीएस की फैसिलिटीज यहाँ पर दे दी गई है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था, जो राशन के सामान उसको मिलते थे, अगर वो एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में काम करेगा तो उसका क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने उसको पोर्टेबिलिटी का सिस्टम यहाँ पर दे दिया है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेट में भी या फर्दर स्टेट में भी आपको पीडीएस के प्रोविजंस मिल जाएंगे, पीडीएस का बेनिफिट मिल जाएगा। साथ में ऐसे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को भी पीएफ और ईएसआईसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, उनको देना पड़ेगा। जर्नी अलाउंसेस की यहाँ पर बात की गई है कि कोई भी एम्प्लॉय एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ रहा है तो उसका जो ट्रेवलिंग का खर्चा है, साथ में अपना वर्क कंप्लीट कर कर वापस घर जा रहा है, तो ऐसे जो जर्निंग अलाउंसेस है टू एंड फ्रॉम के, वो कंपनी को देना कंपलसरी है। बट ये जो ड्यूरिंग द पीरियड रहेगा जिसमें वो घर पे रहेगा, छुट्टी पे रहेगा, तो वैसे केसेस में सैलरी की देने की कोई रिक्वायरमेंट कंपनी की नहीं है। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें, लास्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को 2020, जिसमें प्रोविजंस अगर हम समराइज फॉर्मेट में बात करें कि इसमें क्या प्रोविजंस है, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की, ट्रेड यूनियंस की बात करता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो कंपनीज की एचआर पॉलिसीज थी, हम लोगों को बनाना कंपलसरी था अगर मेरे पास 100+ मैन पावर है। अगर मेरे पास 100 से ज्यादा मैन पावर है तभी मुझे स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ता था। उसको इंक्रीज करते हुए उन्होंने बोल दिया कि अगर आपके पास 300+ मैन पावर है तभी आपको यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना है, अदरवाइज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया। ले ऑफ के प्रोविजंस में थोड़ा चेंजेस किया है कि अगर आपके पास 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉय, अगर आप किसी को रिमूव करते हो तो ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट थी। अभी उनको इंक्रीज करते हुए उन्होंने कंपनीज को बोला है कि अगर आपके पास 300 एंड मोर मैन पावर है, वही केसेस में आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट निकल कर आ रहा है। एम्प्लॉयज के केस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है कि अगर पहले हमें 100 एम्प्लॉयज के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन थी, अब उसको चेंज करते हुए 300 कर दिया, तो हम तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट्स यहाँ पर इजीली निकाल देगा, क्योंकि छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स 300 बिलो तो बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट्स है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज है। तो गवर्नमेंट इसमें फर्दर चेंजेस करने वाली है। ड्राफ्ट रूल्स में भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, पर इसकी लिमिट वापस डिक्रीज होने वाली है। स्ट्राइक नोटिस की अगर हम बात करें, पहले ही हड़ताल करना इजीली था, शॉर्टर नोटिस पीरियड देना पड़ता था, 1 दिन का 2 दिन का नोटिस पीरियड दिया और वहां पर आपको हड़ताल करना इजीली होता, स्ट्राइक पर आप लोग चले जाते थे। अभी उन्होंने कंपल्सरी बोल दिया है कि 14 to 16 डेज का नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 14 डेज का नोटिस पीरियड आपको कंपनी देना है हड़ताल करने के लिए। बट आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स में या बैंकिंग सेक्टर में, जो रूटीन एक्टिविटी से ऐड है, तो वहां पर मिनिमम 16 डेज का 60 डेज का 60 दिन का नोटिस पीरियड देना कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो मार्केट में डिस्प्यूट आ रहा है ट्रेड यूनियंस का, यही है कि हमारे लिए तो अब हड़ताल करना इजी नहीं है, हम लोग नोटिस देंगे तो हमारा हड़ताल का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, गवर्नमेंट इसको कैसे क्लेरिफाई करती है देखकर आने की चीज है। डिजिटल फाइलिंग पहले लिमिटेड थी, हम लोग को मोस्ट प्रोबेबली सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन फॉर्म में मेंटेन करने पड़ते थे, रिटर्न्स ऑफलाइन फॉर्म में फाइल करने पड़ते थे। अभी उसको इंक्रीज करते हुए उन्होंने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है कि आपका जो भी यहाँ पर कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है वो आपको ऑनलाइन करना है, रजिस्टर ऑनलाइन मेंटेन करने हैं, सैलरी रिकॉर्ड सब ऑनलाइन मेंटेन करने हैं। तो यहाँ पर डिजिटल एरा की बात की गई है। अब एक कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, पीएफ और ईएसआईसी की, जो बेनिफिट्स की बात करती है, कंप्लायंसेस को क्लीन करने की बात करती है। एज ए सीए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, हम लोग अपने क्लाइंट्स के कंप्लायंसेस कैसे क्लीन करवा सकते हैं। तो ईएसआईसी की डिपार्टमेंट की जो स्कीम थी वो हो चुकी है, उसका टाइम ओवर हो चुका है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं पीएफ की। पीएफ में जो स्कीम्स है वो है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम अपने क्लाइंट्स को पिच कर सके, अपॉर्चुनिटीज रेज कर सके। एज ए सीए मेरा प्रोस्पेक्टिव रहेगा कि हम अपने क्लाइंट्स को ऐड कर सके और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लीन करवा सके। तो सबसे पहले निकल कर आती है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना।
ये स्कीम्स क्या बोलती है कि अगर आपको न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मोस्ट जो मोटो है वो है न्यू रोजगार जनरेट करने का। तो आपका अगर कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जिसके पास 50 से बिलो एम्प्लॉइज हैं, तो वो केसेस में आपको 2 नए एम्प्लॉय ऐड करने हैं। 2 नए एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय कवर किया जाएगा जिसको फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में आया है, जिसका फर्स्ट टाइम यूएन नंबर जनरेट हुआ है, तो वो एम्प्लॉयज को आपको ऐड करना है। अगर आप 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज आपके एग्जिस्टिंग में है या आप नई कंपनी बना रहे हैं, तो वो केसेस में 5 या 5 से ज्यादा एम्प्लॉय आपको ऐड करने हैं। अब जो भी नए एम्प्लॉय आपने ऐड करे, उस केसेस में उसका पीएफ का कंट्रीब्यूशन चाहे एम्प्लॉय का हो चाहे एम्प्लॉयर का हो, दोनों का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट वापस रेमिट करेगी, रियम्बर्समेंट करेगी। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में, आधार लिंक बैंक अकाउंट में, और कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी के जीएसटी वाले बैंक अकाउंट में। तो क्या हर एक को प्रोविजन का बेनिफिट मिल जाएगा? यहाँ पर फर्दर क्लेरिफिकेशन आया कि आपको फर्स्ट 6 मंथ तक उसका कंप्लायंसेस क्लीन रखना कंपल्सरी है। आज आपने किसी एम्प्लॉय को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद उसका 6 मंथ तक अगर आप रेगुलर कंप्लायंसेस कर रहे हो, आपके ईसीआर में अगर वो दिख रहा है, तभी उसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर 6 मंथ तक आपने नहीं किया है तो वो आपको बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। एम्प्लॉइज वैसे एम्प्लॉइज कवर किए जाएंगे जिनकी वेजेस या जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, उसको अप टू 15,000 रुपीज का बेनिफिट की बात गवर्नमेंट ने करी है अगले 2 साल तक। और अगर आप फैक्ट्री हैं तो अगले 4 साल तक गवर्नमेंट आपको रेमिट करेगी कॉन्ट्रीब्यूशन। कंपनीज के केस में कितना रेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? तो अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए तक है तो आपको 1,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय के केस में रेमिट मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो 2,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। अगर हम बात करें 20,000 से ज्यादा अगर मेरी सैलरी है, तो वो केस में अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये एक पॉलिसी है जिसके थ्रू आप नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, स्कीम्स है जिसके थ्रू आप नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो और पीएफ का बेनिफिट ले सकते हो और कंप्लायंसेस की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट एक और गवर्नमेंट की स्कीम है एम्प्लॉय एनरोलमेंट कैंपेन 2025। पीएफ डिपार्टमेंट एक चीज लेकर आया कि जिनका कंप्लायंसेस एप्लीकेबल था, कंप्लायंसेस नहीं किया वो केसेस में क्या? तो वो केसेस में निकल कर आया कि अगर आपके ऊपर पीएफ के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे, आपको कंप्लायंसेस करने की रिक्वायरमेंट थी 1 जुलाई 2017 से लेके 31 अक्टूबर 2025 तक, अगर आपने ऐसे कंप्लायंसेस नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पर एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप अपना कंप्लायंसेस कर दे और यहाँ पर जो भी पिनल प्रोविजंस एप्लीकेबल थे वो आपके ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। साथ में अगर आपने एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कट नहीं किया, मतलब कि कंपनी ने किसी एम्प्लॉयज का, अगर मान लो कंपनी ने सोच लिया कि मैं पीएफ का कंप्लायंसेस क्लीन कर देता हूँ, कंपनी के केस में निकल कर आता है कि यार मैंने तो एम्प्लॉय का कट किया ही नहीं, मैं अपनी क्या जेब से भरूंगा क्या? तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने क्लियरिफाई किया है कि अगर आपने एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कट नहीं किया है तो आपको उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रेमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, गवर्नमेंट उसको खुद बियर करेगी। एम्प्लॉयर को वन एंड ओनली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रेमिट करना है। साथ में जो मिनिमम डैमेज होगा, साथ में जो डैमेजेस होगा ओनली 100 रुपीज पर रिटर्न एप्लीकेबल होगा, उससे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे। तो और साथ में असेसमेंट्स लिटिगेशंस इस केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आपने वॉलंटरी जो भी डिक्लेयर कर दिया दैट इज द फुल एंड फाइनल, उसके अलावा गवर्नमेंट उसमें कोई भी कुछ नहीं करेगी। तो दीज वाज द चेंजेस अबाउट द न्यू लेबर कोड्स एंड स्कीम्स कि क्या हमारी स्कीम्स है, क्या हम लोग कैसे पिच कर सकते हैं। हमारा बेस्ट प्रयास था कि कम टाइम में हम लोग आपको कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं। फर्दर अगर आपको इसमें कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, लिटिगेशंस में कैसे हो सकता है, कैसे हम उसको सोल्व आउट कर सकते हैं, कंपनी का वेज स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करने हैं, या क्या प्रेजेंटेशन हमारी होगी, तो आप हमसे इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशंस कि एनी इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी फॉर द क्लेरिफिकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी विल टेक द क्वेश्चंस हु डायरेक्टली वन टू वंस। हेलो, एनी डाउट्स? कैन वी गेट द कॉपी ऑफ द प्रेजेंटेशंस? यस वी विल गेट। अगर हम बात करें यहाँ पर ईएसआईसी की लिमिट पहले भी 10 की एप्लीकेबल थी कि ईएसआईसी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आपको तभी लेना पड़ता था जब आपके पास 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। आगे भी वही लिमिट रहेगी, बट एक चीज यहाँ पर डिफाइन कर दी गई कि अगर आपके पास वॉलंटरली अगर आपको जाना है, 10 से कम एम्प्लॉइज हैं, अपने एम्प्लॉइज को कवर करवाना है, तो आप यहाँ पर ईएसआईसी ले सकते हो। बट अगर आप हजार्डियस एक्टिविटीज में काम कर रहे हो, ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ हजार्डियस एक्टिविटी है, तो सिंगल एम्प्लॉय होने के बाद भी आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लेना पड़ेगा। साथ में हॉस्पिटल इंडस्ट्री को भी कवर कर दिया गया है। कुछ नोटिफाइड जो नहीं थे डिस्ट्रिक्ट्स उनको रिमूव कर दिया गया है, तो सबके ऊपर यहाँ पर उसके कवरेज हो जाएगी। यस सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। या टेल मी।
सर पहला तो ये जो ईएससी स्कीम आपने बताई है पीएफ की, तो सर इसको मतलब इसको ऑपरेट कैसे करना है, मतलब इसमें कैसे क्या पेमेंट होगा, कुछ गाइडलाइंस है इसकी? इसकी गाइडलाइंस है कि आपको, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा था, आपको सबसे पहले ई स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना है। ई स्कीम में ईसी स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपका जो भी पीरियड्स का कंप्लाइंसेस पेंडिंग था, उसका एक सिंगल रिटर्न हम्म। फाइल होगा उस पर्टिकुलर पीरियड ओके। का। उस सिंगल रिटर्न ओके। में ही आपको सारे एम्प्लॉइज को, जिसको भी आपको कवर करवाना है और जितना भी पीरियड्स है, हाँ। उसका एक सिंगल रिटर्न में हम्म। फाइल कर देना है। अगर एम्प्लॉइज का कॉन्ट्रीब्यूशन आपने डिडक्ट नहीं किया है तो जीरो रिफ्लेक्ट हम्म। करना है आपको वहां पर। और अगर आपने हम्म। कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट किया है तो आपको डिपॉजिट कराना है। और तो अगर सर इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे, क्या प्रोसीजर रहेगा? तो नॉर्मल प्रोविजंस एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन के। श्रम सुविधा पोर्टल के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन होता था उसी में रजिस्ट्रेशन हो हाँ। जाएगा। अंदर जाने के बाद, लॉगिन करने के बाद ऑप्शंस आता है, वहां पर आपको ई स्कीम में आप उसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना है। अच्छा। ई ठीक है। स्कीम एप्लीकेबल रिटर्न के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से, रिटर्न फाइल करते टाइम ईसी के प्रोविजंस ध्यान रखने हैं। यस। नहीं तो सर जैसे पीएफ लॉगिन बन गया, पीएफ पे अगर लॉगिन किया अपने ईपीएफ की साइट पे, उसके बाद ऑप्शन? उसके बाद वहां पर ऑप्शंस आता है कि आपको ई स्कीम में अच्छा। फाइल करना है क्या। तो आपको ई अच्छा, स्कीम तो वहां सिलेक्ट पे कर। जाके। यस ओके। यस यस। ओके, और दूसरा क्वेश्चन सर ये था कि जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, हम्म जैसे तो उन लोगों को क्या है कि जैसे नॉलेज तो होती नहीं है, वो लोग रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं क्योंकि टेंडर में लगाना होता है पीएफएसआई का, ठीक है, और रिटर्न्स का उनका पता नहीं रहता। तो अब जैसे ये न्यू लेबर कोड है, इसके अंदर क्या है ना, जो अपन रजिस्ट्रेशन जैसे मैंडेटरी तो नहीं है लेना। अगर मैं बात करूं कि जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है, तो टेन हम्म। मोज बेसिकली 10 एंड अबव एम्प्लॉइज के केस में ही एप्लीकेबल है, चाहे वो ग्रेचुटी का, लिव एनकेसमेंट्स का, हम्म। ईएसआई का हो। पीएफ के केस में हम्म। 20 एंड अबव है। तो अगर आपके पास हम्म। लिमिट क्रॉस हो रही है तो कंपलसरी आपको कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। बिलो के केस में वॉलेंटरली है। तो आपको वहां पर, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपको उसका हम्म। कंप्लायंसेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पीएफ का रजिस्ट्रेशन तो हो सकता है वॉलेंटरली लिया हो, 2 आदमी 3 आदमी हम्म। दिखाए। ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन अभी तक तभी मिलता था जब मिनिमम आपने 10 एम्प्लॉइज दिखाए, मतलब आपने वॉलंटरली डिक्लेयर कर हम्म। दिया कि मेरे पास 10 एम्प्लॉई है। तो अगर आपने दस हम्म। एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको कंप्लायंसेस करने की रिक्वायरमेंट है। बट आपको टेंडर ही अलॉट नहीं हुआ, काम होने वाला ही नहीं है, फॉर्म क्लोज करने वाला हूँ, तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप ऐसे केसेस में वापस रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दें। आपने जो भी आपका बैंक अकाउंट क्लोज किया है या जीएसटी सरेंडर किया है, उसके बेसिस पे हम्म। आपका सरेंडर हो जाएगा। तो सर पुराने स्कीम में तो सरेंडर हो ही नहीं सकते ईएसआई पीएफ, तो फिर सरेंडर हो रहे हैं। अगर आपके पास कवरेज नहीं है, बिलो 10 एम्प्लॉइज हैं, आप हम्म। बिजनेस हम्म। सरेंडर, पूरा बिजनेस ही क्लोज कर रहे हैं, जीएसटी भी क्लोज कर दिया, बैंक अकाउंट भी क्लोज कर दिया, तभी वो केस में हम्म। सरेंडर होगा, अदरवाइज सरेंडर नहीं होगा। अगर पुराने रजिस्ट्रेशन से, क्योंकि आपने वॉलंटरली डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे पास 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, तो वो केसेस में हम्म। आपको कंप्लायंसेस करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो सर ऑनलाइन तो सरेंडर नहीं होता ना, ये तो फिर डिपार्टमेंट ऑनलाइन जाके नहीं कराना। होता, डिपार्टमेंट जाकर सबमिशन करना पड़ेगा। पीएफ और ईएसआईसी, पीएफ का प्रोविजन, पीएफ जरूर ऑनलाइन सरेंडर होता है, ईएसआईसी सरेंडर कैंसिलेशन ऑफलाइन मोड में है, ईएसआईसी अभी तक अच्छा। ऑनलाइन मोड में नहीं है, पीएफ ऑनलाइन मोड हम्म। में हम्म। होता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपकी नॉलेज के लिए, सर थैंक यू सो मच। सर हेलो। गुड इवनिंग। मेरी एक क्वेरी थी। यस यस। सर आपने ये स्पेसिफाई किया था कि जो 18,000 से सर ऊपर फर्स्ट ऑफ जॉब। ऑल टेल मी योर नेम एंड द सिटी सो इट विल बी सर गुड। माय नेम इज भरत सिंह राठौर, आई एम फ्रॉम गुड़गांव हरियाणा। ओके ग्रेट। सर मेरा एक ये था कि आपने पहले बताया था कि 18,000 से ऊपर जो लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो लोकल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंडर गवर्न होंगे, और जो उससे नीचे कर रहे हैं वो ऑश कोड में होंगे। सर ये चीज मैंने एक्चुअली इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, बट मुझे कहीं स्पेसिफाइड मिली नहीं थी, तो सर मैं बस इसका सोर्स पूछना चाह रहा था आपसे। आप अगर रूल्स देखेंगे न्यू लेबर कोड्स के, तो वहां पर लेबर कोड में वेजेस, वर्कर्स की डेफिनेशन दी गई है। जी। वर्कर्स की डेफिनेशंस मतलब जो 18,000 एंड बिलो एम्प्लॉइज, जिसकी सैलरी है 18,000 एंड बिलो, वही एम्प्लॉइज कवर होंगे। तो वहां पर जब लिव की प्रोविजंस ओएचएस कोड हम रेफर करते हैं तो वहां पर वर्कर्स बोला गया है। और वर्कर्स की डेफिनेशन हम फर्दर क्लेरिफाई करते हैं, चेक करते हैं, तो जिनकी सैलरी बिलो 18,000 रुपीज है, वो एम्प्लॉइज ओएसएच कोड में कवर होंगे, अदरवाइज वो ओएसएच कोड में कवर नहीं होंगे। उन पर ऐसे केसेस में जो लोकल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट्स है, उनके प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ओके सर। ये सही। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस जितने भी जो आपने अभी मेरा नाम अनिल है, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। यस सर। मेरे को ये जानना था जितने भी जो सर कैन यू स्पीक बिट लाउडली, वॉइस इज वेरी लो। ओके, मैं ये जानना चाह रहा था कि जितना भी अभी आज की डेट में जो भी पेमेंट हेड्स हैं, उसके अंदर में जो रियम्बर्समेंट पार्ट है,
वो रियम्बर्समेंट पार्ट जो है वो एग्जम्पशन में जाएगा या वेजेस में जाएगा? सर रियम्बर्समेंट पार्ट अभी तक भी सैलरी में कवर नहीं होता था, क्योंकि वो सैलरी का पार्ट नहीं है। पर्टिकुलर कोई एक्सपेंस एम्प्लॉय ने खर्चा किया, उसके अगेंस्ट में ही उसको बेनिफिट्स उसका मिलता, रियम्बर्स किया जाता था। तो रियम्बर्समेंट मेरा वेजेस की डेफिनेशंस में नहीं आता है, वो सेपरेट रहेगा। उसका जो मुझे रिस्ट्रक्चरिंग करना है उसमें रियम्बर्समेंट कवर नहीं होगा। रियम्बर्समेंट छोड़ के 50% करना है सर बेसिक को? सर जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरा 1 लाख रुपए फिक्स मंथली वेजेज है, 10,000 रुपए मुझे रियम्बर्समेंट, मतलब मुझे फैसिलिटी नहीं दी जा रही। अगर फैसिलिटी के रूप में दिया जा रहा है कि लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हो, कार फैसिलिटीज दे रहे हो, या हाउस फैसिलिटीज दे रहे हो, तो वो ऑलरेडी कवर्ड है, वो उसमें आएगा वेजेस के डेफिनेशंस में। बट अगर एम्प्लॉय ट्रेवलिंग पे गया, कोई बिजनेस टूर पे गया, उसका रियम्बर्समेंट आपने किया है वन टाइम या 6 मंथली आप करते हो, तो वो रियम्बर्समेंट कवर नहीं होगा। वो नहीं पहले नहीं, वो definition नहीं में होगा, होगा। क्योंकि जो अभी क्या है कि जो कॉर्पोरेट्स के अंदर में जितना भी रियम्बर्समेंट पार्ट है उसको डालते हैं कि आदमी का टैक्सेबल इनकम के अंदर में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए उनको। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो है पॉइंट ऑफ आदमी व्यू से अगर आप जाते हो तो वो कवर्ड है सर। वो आपको वो अदर कवर्ड जो है। मैंने बोला कि 50% वाला जो सेकंड क्राइटेरिया है, उसके अंदर आपको ओके। कवर करने पड़ेंगे, बट उसका अमाउंट इतना ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए कि वो बेसिक से भी ज्यादा हो जाए। नहीं नहीं नहीं, उतना उतना तो नहीं है, खैर बेसिक से ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके अंदर यस। में अगर मैं उसको जैसे अब टैक्सेबल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनसे ईयरली बेसिस पे उसके बिल तो लेता ही हूँ, तभी उनको उसका जो है टैक्स का रिबेट मिलता है उसके अंदर में। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो भी वो उसमें वेजेस में कवर्ड होंगे? कवर है सर। तो भी कवर्ड होंगे, ओके। दूसरा सर एनुअल एनुअल जो पर्क्स हैं, पीएफ या ग्रेच्युटी, उस सबका 50% करना है हमें बेसिक? वेजेस की डेफिनेशंस में जो क्लियर किया गया है कि लास्ट का जो 10 एंड 11 का पॉइंट अगर आप देखोगे, तो उसमें बोला गया कि ग्रेचुटी और लिव एंकेजमेंट्स वो आपको कवर नहीं करना है। उसको एक्सक्लूड करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आता है उसका 50% आपको करना है। तो उसके ग्रेच्युटी उसके उसके एंड अंदर में लिव ग्रेजुटी, इनकैशमेंट? बोनस, लिव इन कैशमेंट, नहीं, ये बोनस तीनों नहीं, चीज। ग्रेचुटी एंड लिव एंकेजमेंट ओनली, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ओनली ओके रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ओके। नहीं लेकिन क्या है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जो कि इसको जो है ईयरली बेसिस पे इन कैश कर देते हैं, उसको वो रिटायरमेंट पे लेकर नहीं जाते हैं। तो वो केस में भी वो एप्लीकेबल नहीं है। लिव एंकेजमेंट्स चाहे आप ईयर 1 ईयर में करो या आप रिटायरमेंट पे करो, वो केस में लिव एंकेजमेंट्स और ग्रेचुटी आपको एक्सक्लूड करनी है। वो मतलब से सीटीसी में से एक्सक्लूड कर दूं उसको मैं? यस। ओके। एंड इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊं, अब जैसे आपने बताया कि इसका सारा प्रोविजन लेकर के हमें अभी जो है Q3 Q4 की बैलेंस शीट के अंदर में इसका पूरा प्रोविजन लेना होगा। अब इसके अंदर में जो मेरा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है लाइक ईएसआई पीएफ, जो उसके ऊपर मेरा एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला है इसको लेकर के, उसको मैं कैसे दिखाऊंगा अपनी बुक्स ऑफ सर अकाउंट? ईएसआईसी और पीएफ के प्रोविजंस आपको 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स नए चेंजेस होंगे, एग्जिस्टिंग कंटिन्यू है। केवल और केवल आपके जो बर्डन्स होने वाले हैं ग्रेचुटी और लिव एंकेजमेंट्स का चेंजेस होने वाला है। तो वैसे ओके केसेस में मैंने आपको बताया कि आपको नई वेजेस की डेफिनेशंस फॉलो करनी है, और जो भी चेंजेस आ रहा है उस प्रोविजंस का वो पास्ट सर्विस कॉस्ट मानते हुए आपको इमीडिएटली पीएनएल में उसका रिफलेक्ट देना है, चाहे वो Q3 के फाइनेंशियल से रिफ्लेक्ट रिलेटेड हो या Q4 के फाइनेंशियल से। बट तो अगर उसको आपका उसको सिंपल ऐसे, बात यह है कि जो उसका उसका सिंपल से ये हो गया कि जो मैं रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा उसके अंदर में मैं प्लस माइनस करके उसको दिखा दूं, और कोई भी मेरे को लाइबिलिटी एक्स्ट्रा खड़ी करने की जरूरत नहीं है उसमें। सर आप यहाँ पर दो अलग वे में बात कर रहे हैं। आपने पहले मुझे पूछा कि अगर मेरे को फाइनेंशियल्स में उसका Q3 Q4 के फाइनेंशियल्स में क्या इफेक्ट देना है, तो मैं करेक्ट आपको यहाँ पर क्लियरिफाई कर दूं कि ग्रेचुटी और लिव एंकेजमेंट्स का प्रोविजंस आपको Q3 Q4 के फाइनेंशियल्स में नई वेजेस की डेफिनेशन के हिसाब से दिखाना है। तो आपका करेक्ट है, पहले वो प्रोविजन ठीक 100 रुपए है। का बनता था, अभी वो 120 का बन गया, 150 का बन गया न्यू रेट के हिसाब से। तो तो जो मेरे भी को उसी चेंजेस पे आया जाना उसको होगा। पास सर्विस कोस्ट दिखाते हुए आपको इमीडिएटली पीएनएल में डालना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या एंड व्हाट अबाउट पीएफ एंड ईएसआई? पीएफ और ईएसआईसी के प्रोविजन अभी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टिंग ओके जो प्रोविजन है वही कंटिन्यू रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये पीएफ और ओके ईएसआईसी और मैटरनिटी के बेनिफिट्स के प्रोविजंस 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ओके। ने अभी रूल्स फाइनलाइज नहीं किए हैं। अच्छा और तो सर केवल और सीटीसी केवल में? ग्रेचुटी और लिव एंकेजमेंट्स, वो भी इंस्टीट्यूट ने बोल दिया, सीए इंस्टीट्यूट ने, कि फाइनेंशियल्स का इम्पैक्ट क्लियर दिखना चाहिए फाइनेंशियल्स में, इसलिए ग्रेचुटी और लिव एंकेजमेंट्स के प्रोविजंस और एप्लीकेबल है। सीटीसी में सर एम्प्लॉयर पार्ट ऑफ पीएफ भी कंसिडर किया जाएगा? 50% सीटीसी का पीएफ मतलब करने के? कॉस्ट टू कंपनी होता है, दैट मीन्स ऑल आर कवर्ड। ठीक है सर, थैंक यू। या और सर हमारी सैलरी में एक प्रोजेक्ट इंसेंटिव पार्ट है, स्पेशल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इंसेंटिव, प्रोजेक्ट सर अगर इंसेंटिव। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा कि हमारे बाकी अदर मेंबर्स भी हैं, तो उनकी क्योरीज भी हम ले लें, अदरवाइज आप मुझे पर्सनल कनेक्ट कर सकते हैं। मैं जो ठीक है कंप्लाइंसेस सर। करता हूँ पूरी पैन इंडिया लोकेशंस पे करता हूँ, मुंबई में बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं
मैं पेन इंडिया नहीं कोई कवरेज बात मेरा नहीं है, सर, हम लास्ट 8 ईयर से बॉम्बे इसी में में भी प्रैक्टिस है, आपसे तो आप आकर मुझसे मिलेंगे। कनेक्ट कर सकते हैं फर्दर। यस, जैन Right. साहब के नाम से जो है वो पूछ सकते हैं। यस, ठीक जैन है। साहब। सर विथ रिगार्ड्स टू द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो नया लॉ के हिसाब में आया है, वहां पे बता दिया है कि 50% के ऊपर आपका डिडक्शंस नहीं होना चाहिए, which is as per the payment of wages act. And earlier this payment of wages act was very specifically given for the employees जिसका wages 24,000 के नीचे था, दो जो minimum wages के हिसाब में था. So यस, but now it has so happened that it is applicable for all employees, but it is practically very challenging to recover all the expenses or all the deductions. Example, if any employees have not given the proof, तो TDS तो इतना हो जाएगा कि उसी मंथ में maybe it could go to negative. We मैडम यहाँ can't पर जो tell. लिमिट की बात की गई है ना 50% और 75 से रिड्यूस करके 50%, वो Yes. केवल और केवल टीडी मतलब जो हमें एक्सक्लूड करना है, जो हम लोग को अब कवर नहीं करना है, वो है यहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के प्रीमियम्स, या फिर हम कोई बॉन्ड परचेज करते हैं उसका प्रीमियम, या एलआईसी की पॉलिसीज, ये कवर नहीं होगी। बाकी टीडीएस, पीटी, पीएफ, ईएसआईसी जो एप्लीकेबल है रूल्स के हिसाब से बनना चाहिए वो कंटिन्यू है, वो कवर नहीं होंगे। वो आप जो उनका बनता है कि डिडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए। अब आप यहाँ पर बात करते हो कि हम वो डिडक्शन डिक्लेरेशन दे देता है और मार्च के मंथ में उसकी सारी लाइबिलिटी एक साथ इंक्रीज हो जाती है टीडीएस की, तो आप उसका जनरली लोग क्या करते हैं दिसंबर के मंथ में ही उसका हम ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिशन ले लेते हैं, तो उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो लोग स्प्रेड करते हैं, लास्ट मार्च के मंथ में स्प्रेड नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर हम लोग एडवाइस करेंगे कि आप दिसंबर के मंथ में उनसे डॉक्यूमेंट ले लें। हाँ सर, वी यूजुअली डू इट फ्रॉम द मंथ ऑफ डिसम्बर इटसेल्फ। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ रिकवरी आ जाए, सोचिए कि अगर एम्प्लॉय छोड़ के गया है इन बिटवीन द ईयर, वी डोंट हैव दिस प्रूफ। बेसिकली आप मार्च के तो मंथ आप जब एफ कर रहे हो तो उस टाइम उसका फाइनल फुल एंड फाइनल क्लियर करते टाइम उसका जो भी रिकवरी बनता है या डिडक्शंस बनता है वो टाइम आप करोगे सही। यस, वी विल रिकवर, बट द एक्ट वेरी क्लियरली सेज, जब आप सेक्शन 18(2) में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि इनकम टैक्स एंड स्टैट्यूटरी, एंड सेक्शन 18(2) में वेरी स्पेसिफिकली लिखा है कि इनकम टैक्स एंड ऑल दीज डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड अबव 50% ऑफ द डिडक्शंस। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ इस क्वेश्चन वेरी स्पेसिफिकली। वो जो प्रोविजंस पहले थे वही सेम आगे कंटिन्यू, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो यू आर टेलिंग दैट 50% रूल जो भी है वो अप्लीकेबल नहीं है स्टैट्यूटरी लॉ के लिए, यस, बट लॉ के स्टेशनरी के जो हिसाब स्टेशनरी का बट जो डिडक्शंस बनता है 18 टू 83 का जो भी प्रोविजंस है जो बनता है टीडीएस, पीएफ, ईएसआईसी, वो तो आपको करना ही है। अगर आपका एक ही टाइम पे उसका पूरा बर्डन आ रहा है, आपने नहीं किया, तो आप वो आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप उसका डिडक्शंस करते हो या आप उसको कैसे स्प्लिट करते हो। अदरवाइज जो बात की गई है डिडक्शंस की 50% की, वो मंथ ऑन मंथ सर्विसेज के लिए बात की गई है। month on month services, totally agreed, but it should not happen that there would be some or the other situation wherein the recovery would definitely go higher. यस, सिचुएशन इज दैट, बट वो सिचुएशन आपको तभी अराइज होगी ना जब लास्ट एंड एफ के टाइम। मंथली के केस में तो अराइज होगी नहीं, क्योंकि आप इतना डिडक्शन तो किसी का नहीं कर दोगे कि लाख रुपए की सैलरी और 50,000 रुपए टीडीएस में जा रहा है। हाँ वो तो है, तो तब क्या करना है, क्योंकि वहां पे तो वो लोग लिखा है कि एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, तो रूल ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं वहां पे। नहीं मैडम, वहां पर जनरली एडवाइस ये रहता है कि आपका जो भी डिडक्शन है आप उसको ओवर द सर्विस पीरियड स्प्रेड करो और उसको प्रपोर्शनेटली करो। अगर आप एक लास्ट एंड मोमेंट पे लाके एफ में क्लियर करोगे तो वो रूल्स ब्रेक होगा ही सही, फिर वो नहीं हो सकता। तो जनरली जो ये प्रैक्टिस होती है कि आप ओवर द पीरियड से उसको स्प्रेड करो, और पर्टिकुलर मंथ ऑन मंथ करोगे तो आपका कभी भी डिडक्शन 50% ज्यादा आने वाला ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक पॉइंट और बताइए प्लीज, जो अपना अभी क्या है कॉर्पोरेट्स के अंदर में सोडेक्सो और उन सब के मील कूपन वगैरह सब देते हैं, क्या वो भी वो कवर्ड होंगे exclude सर, होंगे? हाँ जी, कवर होंगे, वो भी इंक्लूडिंग है। वो भी इंक्लूड है। किसी भी टाइप की फैसिलिटीज आप दे रहे हो या किसी भी टाइप का अलाउंसेस आप दे रहे हो वो कवर्ड है। सेकंड पार्ट वाला मतलब 50% इसका कवर्ड। मतलब ये हो गया इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके से स्टाफ को जो है आप बचा नहीं सकते हो, उनका इनकम टैक्स नहीं बचाओ ना, वो आप सेकंड पार्ट में रखो, बचा तो सकते हो ना। 50% बेसिक रखना है, सेकंड पार्ट हाँ 50% में आप उसको एचआरए में रखो, अदर अलाउंसेस में रखो, आप सोडेक्सो में रखो या किसी भी फॉर्मेट में रखो, वो तो तो है ही आपको है, सेकंड पार्ट। 50% उसमें जा सकता करके। यस, यस, ठीक है सर मेरा ईएल को लेके क्वेश्चन, वन बाय वन प्लीज। यस सर ईएल को लेके क्वेश्चन था मेरा। सर, योर नेम प्लीज। सर तरुण बोल रहा हूँ गुड़गांव से। यस सर। जैसे हम मैक्सिमम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में EL 30 जो EL है वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं,
या तो जो बची हुई ईएल है वो लैप्स कर सकते हैं या उसका एनकैशमेंट जरूरी है? सर अगर सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट्स की मैं अगर बात करूं कि जैसे 30 लीव्स की है, अगर मैं बात करूं कि तो 30 लीव्स आपको एनुअली देनी है। वो उससे जो अगर अगर कोई एम्प्लॉय एक्सीड करता है तो कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजंस और लीव एंकेजमेंट्स का प्रोविजंस भी है। तो जो सोपेक्स के प्रोविजंस है वो लीव एंकेजमेंट्स और कैरी फॉरवर्ड की भी बात करते हैं। अगर किसी ने अवेल नहीं करी पर्टिकुलर टाइम पे, उसमें टाइम भी दिया गया है कि कितने साल के अंदर वो होनी चाहिए और मिनिमम उसको कितना रखना है। तो अगर वो लिमिट एक्सीड करती है तभी उसका लीव एंकेजमेंट्स का प्रोविजंस एप्लीकेबल है और उसको आपको एंकेज करनी पड़ेगी। वो लैप्स नहीं कर सकते इस केस में? नहीं, लेप्स नहीं कर सकते। लेप्स के केस लेप्स वो तो एम्प्लॉय या तो अवेल करेगा, बट वहां पर लिमिट दी, ऐसा नहीं कि 30 एनुअली दी और 30 की 30 ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। उसका टाइम दिया गया है, हर स्टेट का अलग अलग टाइम दिया गया है कि 3 साल में इतनी ही लीव्स, मतलब 45 लीव्स या 90 लीव्स या 120 लीव्स, जितनी इसकी लिमिट है वही, उससे एक्सेस ही कैरी फॉरवर्ड होगी, उससे अबाउ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ओके। एक दूसरा क्वेश्चन ईएसआई को लेके है, जो जैसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है और जो ईएसआई में कवर हो जाएंगे नई वेज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 अप्रैल से ही करना है उसमें ईएसआई में? यस यस, अभी तक क्या है कि गवर्नमेंट का सिस्टम बना नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है कि रजिस्ट्रेशन लो, रजिस्ट्रेशन लो। जैसे मैं बात करूं कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, नया लेने जा रहे हैं, तो पोर्टल अलाउ नहीं करता क्योंकि बोलता है कि आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन से आरओसी के थ्रू मिलता है आपको। तो अभी तक एग्जिस्टिंग प्रोविजन उसमें आए नहीं है, पोर्टल बना नहीं है। तो जिनका भी नया रजिस्ट्रेशन लेना है इस प्रोविजन की एप्लीकेबल की वजह से, वो 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स ही लेना है। नहीं, हमने रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। हम ये बोल रहे हैं जो न्यू वेज एक्ट के अकॉर्डिंग नए एम्प्लॉय उसमें कवर हो रहे हैं 42,000 वाले, तो उनका रजिस्ट्रेशन जो है ईएसआई में 1 अप्रैल से ही लेना है। कंप्लायंसेस करने की ईएसआई, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले रखा है, अगर आपके केस में मैं बताऊं आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, दैट मीन्स आपने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे पास मोर देन 10 एम्प्लॉइज है, मोर देन 10 एम्प्लॉइज आपके पास एप्लीकेबल, तो आपको कंप्लायंस तो उसी दिन से करना था, पर आप नहीं कर रहे, तो आप वो बोलो कि नए प्रोविजंस के हम हिसाब कर से रहे मैं हैं, इसकी, मैं नए वेज कोड के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। जो 42,000 के उसमें वो आ 1 गए। अप्रैल से एप्लीकेबल होंगे, वो केस में 1 ओके, अप्रैल से एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। या यस, सीएस, सीएस आपके नाम से जो है वो। हाँ अंकुश जी। यस, हेलो। ये बताइए, ये एक कोल्ड मिनट को। सर, संजीव सर मैं एक मिनट होल्ड करता हूँ, सीएस आपका लेके फिर आपके टर्न पे आता हूँ। जी हाँ जी हाँ। हेलो। यस सर। हाँ गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। हाँ मेरा दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जो नया कंपनी फॉर्मेशन करते हैं ना, तो अजाइल के थ्रू जो भी पीएफ और ईएसआईसी आता है, ठीक है, तो आपने बताया कि अगर आपका पीएफ ईएसआईसी आ गया, जब तक आप एक्टिव नहीं करेंगे ना तब तक वो चालू नहीं होगा, बराबर है। सपोज करो मैंने 6 मंथ तक कुछ या 1 ईयर तक मेरा कंपनी में कुछ ये नहीं हुआ, इनकॉर्पोरेट मतलब कमेंसमेंट नहीं हुआ करके बिजनेस, और मेरा कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो वहां से अगर बाद में, अगर मैं 1 साल बाद में अगर स्टार्ट करूँ तो वो हो जाएगा? मैं आपको इसको एक मिनट, क्वेश्चन वापस आप रिपीट करेंगे लास्ट। जैसा भी नया कंपनी फॉर्मेशन कोई किया, ठीक है, तो अभी पीटी पीएफ ईएसआई सब साथ में आ रहा है, बराबर है। तो जैसे ही वो पीटी पीएफ ईएसआई से आ गया, बट सपोज करो मेरा प्रोडक्शन या कंपनी जो कमेंसमेंट है ना, वो 1 ईयर 2 ईयर तक नहीं हुआ करके मेरा नील नील जा रहा है सब चीजें करके, ठीक है, तो मैंने अगर 1 साल के बाद में अगर मैं पीएफ ईएसआई से स्टार्ट करूँ तो वो हो जाएगा क्या? यस, अब मैं इस केस में क्लेरिफाई कर दूं, मैंने बताया था ड्यूरिंग द सेशंस कि हाँ। अगर आपको एजाइल प्रो के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन आ गए प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड ओपीसी के केस में, यस, बट अभी आपके ऊपर अजाइल के थ्रू आ एप्लीकेबल ही रहा है। नहीं है, बट आपके हाँ। ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वो केसेस में आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, पीएफ का कोड एक्टिव नहीं करना है। पीएफ आप जब भी हाँ। लॉगिन करने जाओगे वो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हम्म। आपके पास कितने हैं और कौन सी डेट से एक्सीड करते हैं। तो जब तक आप वो एंटर ओके। नहीं करोगे पीएफ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। साथ में हम्म। सेपर साइड में आप डिपार्टमेंट को लेटर देके रखो कि मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सीड नहीं करते, मैं कंप्लाइंस नहीं कर रहा। ठीक ईएसआईसी है। की मैं बात करूं तो ईएसआईसी में 6 मंथ्स का डोरमेंट पीरियड दिया जाता है। फर्स्ट सिक्स ठीक मंथ्स है। आपको डोरमेंट पीरियड मिल गया, आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ड्यूरिंग द पीरियड एप्लीकेबल हो गया, आप कंप्लाइंस कर लो। बट अगर आपके पास एक्सटेंड, अभी भी आपके पास कंप्लाइंस एप्लीकेबल नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की लिमिट क्रॉस नहीं हुई, तो आप उसको एक्सटेंड करते जाइए। 6 मंथ्स ओके, एक्सको एक्सटेंड करते जाइए जब तक आपके बट ऊपर इंटीमेट एप्लीकेबल करना नहीं। पड़ेगा डिपार्टमेंट को? ऑनलाइन ही अवेलेबल है वो। ईएसआईसी की जो फैसिलिटी डोरमेट एक्सटेंड करने की वो ऑनलाइन ही है, पीएफ में भी ओके। ऑनलाइन ही है। केवल डिपार्टमेंट को ओके। पीएफ में एक बार सिंगल लेटर देना है कि ये मेरे ऊपर ओके। एप्लीकेबल नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। तो ईएसआईसी के सिंगल प्रोविजन तो लेटर दैट इज ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ऑनलाइन एक्सेप्ट और करना है। ऑफलाइन, मतलब जो पीएफ का बता रहे हो लेटर देना है, वो डिपार्टमेंट में जाके देना है, ऑनलाइन सबमिशन करना है? पीएफ का दो चीज है, पहली चीज जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तब तक एक्टिव नहीं होगा, कंप्लायंसेस जी। करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
सेपर ओके साइड के लिए आपको एक लेटर डिपार्टमेंट को डिस्पैच करना है कि मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, इसलिए मैं कंप्लायंसेस करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ये हो गई पीएफ की बात। अदरवाइज तो ऑनलाइन है, वो भी सेपर साइड में आपको एक लेटर देना है ऑफलाइन मोड में। ईएसआईसी ठीक के है जो भी प्रोविजन है वो सारे ऑनलाइन ही है, आपको डोरमेट पीरियड ऑनलाइन टू ऑनलाइन एक्सटेंड करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा ये था, जो डेली वेजेज वाले जो वर्कर्स रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टाइप वाले वर्कर्स रहते हैं, तो अभी जैसे आज कोई वर्कर आया, कल वो नहीं आ रहा, ठीक है, परसों उसके दूसरा तीसरा आ रहा है, ऐसा चेंज हो रहा है। तो आपने बोला था कि जो लेबर होता है या वेजेज होता है, सैलरी होता है ना, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए, डिजिटल से। बट अगर सपोज करो डेली बेसिस मेरे एम्प्लॉय चेयर वेरी हो रहे हैं, तो चेंज वो हो रहे हैं, केसेस तो वो में केस में। डिपार्टमेंट बोलती है कि आप पर्टिकुलर एक बंदा पकड़ो, सारा हाँ जो भी सैलरी है उसके अकाउंट में डालो, वो आगे फर्दर रेमिट करेगा, केस विड्रॉ करके देगा। क्योंकि यहाँ पर डिस्प्यूट खत्म करना है डिपार्टमेंट को, क्योंकि एम्प्लॉयर बोलता है कि मैंने उसको पेमेंट कर दिया था केस में और ये फर्जी साइन स्लिप पे लेके आया था, तो डिपार्टमेंट को वो लिटिगेशन खत्म करना है, वो एक्सेप्ट नहीं करना है ऐसे डॉक्यूमेंट। तो उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बोला है कि सारा का सारा आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, चाहे आप उसके अकाउंट में करो रेस्पेक्टिव, या आप किसी पर्टिकुलर एक बंदे के अकाउंट में सारा ट्रांसफर करो। तो अगर डेली वेजेज वाले रहेंगे तो भी उनको डिजिटली ऑनलाइन जाना ही देना देना है? है, यस। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू यस थैंक संजीव यू सर, सर। अब आप पूछिए। ओके। नमस्कार जी। यस सर। हाँ, मेरा क्वेश्चन यही एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन को लेकर है। हेलो। हाँ हाँ सर, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन को लेकर ही है। जैसे अभी मेरे प्रोड्यूसर ने जो है ये क्वेश्चन पूछा डेली वेजेस लेबर को लेके, कुछ इसी तरह का ही इशू है। जैसे ये कोल्ड स्टोरेज में ना सैकड़ों के नंबर में लेबर काम करती है थ्रू हाँ कॉन्ट्रैक्टर, और हाँ। वो सीजनल लेबर होती है, और उनका कोई फिक्स टर्म भी नहीं होता है। कोई आज काम कर रहा है, कल नहीं करेगा, परसों करेगा, लाइक दैट। तो ऐसे लोग क्या एम्प्लॉय की डेफिनेशन में पहले भी थे या अब आ गए हैं? पहले भी थे, आज आगे भी रहेंगे, क्योंकि अगर आपने किसी को पर्टिकुलर हायर के लिए भी हायर किया, मतलब वर्कर ओके। के लिए एज अ वर्कर के डेफिनेशंस में आपको डेली वर्कर, कैजुअल वर्कर, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनी, परमानेंट एम्प्लॉइज, एफटीईज, पीस मिल वर्कर, सब लोग कवर्ड है। अच्छा, इसमें एक्सक्लूसिव एसोसिएशन का भी कोई कंसेप्ट है क्या? नहीं, अगर आपने अप्रेंटिस एक्ट में किसी का रजिस्ट्रेशन लिया है, अप्रेंटिस एक्ट का गवर्नमेंट का सेंट्रल एक्ट है, अगर आपने उसमें रजिस्ट्रेशन लिया है तभी आप एक्सक्लूड, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, इसकी कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करने का कोई सजेशन दे सकते हो आप? सर सजेशंस तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं कॉस्ट दूंगा, आप मुझे इफेक्टिव, पर्सनली कॉस्ट कनेक्ट करें, इफेक्टिव। मैं आपको वहां पे सजेशंस दे सकता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो पर्सनली कनेक्ट करने के लिए सुमित जी नंबर प्रोवाइड करेंगे आपका? सर स्क्रीन पे सामने नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे अच्छा उसको। ठीक है। अच्छा अच्छा, संजीव हाँ सर ठीक नंबर लिखा भी हुआ है और मैं ठीक शेयर भी कर दूंगा सर। ठीक है, ठीक। So now थैंक यू we are सुमित जी। closing the sessions. If यस you यस any अंकुश जी, doubts यस। or if you want to further अंकुश clarify जी, any डिटेल doubts, है so you आपकी, can connect me कनेक्ट personally. कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ओवर हो गया है, तो इट्स टाइम आई थिंक क्लोज करते हैं। और आई वंडरफुल सेशन रहा आपका। Yes, yes, yes. So thanks to all of you. Thanks to give me an opportunity to interact all of you. Thank you, Sumit sir, and the whole team. Thank you, sir. थैंक यू अंकुश जी, एंड थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट फॉर वंडरफुल जॉइनिंग इंटरेक्शन। और आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ इंटरेक्शन अच्छा रहा, और बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो नए टॉपिक पर आपने डिस्कस किए, तो स्पेशल एक्चुअल में जो थैंक्स टू लेबर यू। कोड्स का जो पूरा अगर मैं बात करूँ तो 3 घंटे का पूरा है, पर हम लोग 3 घंटे सेमिनार नहीं रख प्लान वेबिनार नहीं करेंगे रख सर एक बार नए सकते। फाइनेंशियल वन ईयर एंड में। हाफ आवर्स में जितना कवर हो जाता है हम लोगों ने करने का पूरा ट्राई किया नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा, एक शुरुआत हुई है, क्योंकि इस तरह का टॉपिक मैंने पहले प्लान नहीं किया था, स्पेशल प्रोग्राम रहा, तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। तो थैंक यू थैंक यू सो सर। मच अंकुश जी, वंस अगेन, एंड थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट। मैं नंबर सुमित ग्रुप पर भी सुमित जी शेयर कर दूंगा। सुमित जी। यस 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 यस। हाँ, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अंकुश जी से भी करूंगा, कि ये इस तरह का प्रोग्राम थोड़ा सा 2-3 बार कराइएगा, तो वाकई अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाएगी। क्योंकि ये हम लोग जो स्मॉल प्रैक्टिशनर्स हैं, इनमें बड़ा लेबर लॉ के प्रैक्टिस को लेकर बड़ा इनिविशन रहता है, तो राइट थोड़ा राइट सा राइट। और एम्बोल्डन करने सर की एक और जरूरत प्लान है। कराऊंगा, 15 अप्रैल के बाद जब बैंक ऑडिट ओवर हो जाएगा तो एक और प्लान कर देंगे सर। तो तो अंकुश जी को बहुत बढ़िया गिफ्ट दीजिएगा, ये थोड़ा सा एम्बोल्डन करें यस यस, लोगों को, स्मॉल फर्म्स अंकुश जी को। को बिल्कुल देंगे अरे सर, सर, बिल्कुल हमारी तरफ से हैंड ओवर होगा। थैंक यू सो मच सर, संजीव सर। थैंक यू सर, और थैंक थैंक यू अंकुश जी वंस अगेन, एंड यू सर, थैंक्स थैंक टू यू। ऑल पार्टिसिपेंट। अंकुश जी, प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिएगा, अभी मैसेज आने हाँ शुरू मैं हो अभी गए, आपको भेज दूंगा, आप क्योंकि आगे फर्दर मुझे देख। अपने सारे ग्रुप्स पे शेयर करना होगा श्योर प्रेजेंटेशन सर, आफ्टर द सेशन, तो श्योर सर, श्योर। रिकॉर्डिंग विल ऑल्सो बी शेयर टू ऑल। ओके ओके, थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक यू। थैंक